ایک اور نئے دن کا آغاز، چڑیوں کی چہچہاہٹ، ہواؤں کے ذریعے پیڑوں کے پتوں میں سرسراہٹ اور چمکتے ہوئے سورج کی نظروں تلے ان پھولوں کی مسکراہٹ صبح اپنے آنے کی خبر دے چکی ہے اور مجھے اس بات سے آگاہ کر گئی ہے کہ ایک اور رات میں نے کاٹ لی، ایک اور رات کو میں نے اپنے اتہاس کے پنوں میں درج کر لیا جو مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ ایک اور رات میری چیخوں پکاروں کو اپنے اندر سمیٹے خاموشی سے بنا کچھ کہے گزر گئی ہے اور مجھے اس خاموشی میں، اس اندھیرے میں بس تنہا چھوڑ گئی ہے، جہاں رہنے کا میں عادی سا ہو گیا ہوں۔ اب روشنی راست نہیں آتی مجھے، یہ اندھیرا بہت اپنا سا لگنے لگا ہے جو اس وقت اس کمرے میں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جس کو گلے لگائے میں اس اندھیرے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ اندھیرا مجھے خود میں چھپائے ہوئے ہے۔ بالکل ایک سے لگ رہے ہیں ہم دونوں، بالکل سیاہ، خاموش تنہائی میں ڈوبے ہوئے۔ یہ سیاہ خاموشی اپنا ساتھ تو بھرپور نبھا رہی ہے، مگر میں چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ زخموں کی شدت سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش میں ان زنجیروں سے نکلتی چیخیں اس سیاہ خاموشی کو توڑ دیتی ہیں جو کہ میرے ہاتھوں اور پیروں کو بے دردی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی پکڑ اتنی تیز ہے کہ میری کلائیوں اور پیروں کو زخمی کر گئے ہیں اور ان سے بس خون رس رہا ہے، جن سے مجھے ہر گزرتے وقت کے ساتھ تکلیف بڑھتی ہوئی ہی محسوس ہوتی ہے، اور جب پسینے اور آنسوؤں کی نمکین بوندیں میرے چھلنے ہوئے وجود پر پڑتی ہیں تو ایک تیز جلن کا احساس ہوتا ہے، اور پھر اس درد کی شدت میں بہنے والے اگلے آنسو کی بوند کو اپنی پلکوں میں چھپا نہیں پاتا اور وہ میرے جسموں کے کھلے زخموں پر بے دردی سے گرنے لگتے ہیں اور مجھے تکلیف کی آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کس جرم کے عوض مجھے یہ سزا مل رہی ہے، کس غلطی کی وجہ سے مجھے اس اندھیری دنیا میں قید کیا گیا ہے جہاں مجھے سورج کی ایک کرن بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک لمبا سمے ہو گیا ہے مجھے کھلا آسمان دیکھے ہوئے، سال گزرنے کو ہے لیکن ابھی تک میری سزا ختم نہیں ہوئی ہے اور مجھے ابھی بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اور کتنے دن میں یہاں رہنے والا ہوں، شاید ساری زندگی۔ ہاں، کیونکہ ان گزرے وقتوں میں مجھے میرے صرف اسی سوال کا جواب ملا ہے کہ مجھے اب یہاں ساری زندگی رہنا ہے، اس قید میں۔ اس لیے میں بس اب اپنی زندگی کے آخری دن کا انتظار کر رہا ہوں، جس دن مجھے آزادی ملے گی اس اندھیری قید سے۔ So hello everyone, welcome to my channel Ruhani Imagination World. So here I am again after a long time. So کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ میں اتنے دنوں سے ویڈیو کیوں نہیں ڈال رہی تھی، کیونکہ میرا فون ٹوٹ گیا ہے اور میں نے اپنی اس پرابلم کو کمیونٹی پوسٹ پر آپ سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اینڈ اسٹل یہ پرابلم ابھی بھی ہے، لیکن میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اسٹوری اپلوڈ کروں گی، اینڈ آپ لوگ اندازہ لگا ہی سکتے ہو کہ کسی اور کے فون سے ریکارڈ کر کے اسٹوری اپلوڈ کرنا میرے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، بٹ اسٹل ہیئر آئی ایم وتھ مائی نیو ون شارٹ ناول۔ ان 3 months کے دوران میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ابھی بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو میری اسٹوری کا بھی بے صبری سے انتظار ہے۔ جہاں کچھ لوگ ابھی بھی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو کچھ نے ساتھ بھی چھوڑا ہے تو کچھ نئے جڑے ہیں۔ بہت سے لویبل کمنٹس ریسیو ہوئے ہیں مجھے، تو میں بس یہ جاننے کے لیے کیوریس ہوں کہ شروع سے اب تک کون لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں۔ سو لیٹ می نو ان کمنٹ باکس۔
प्लीज़, इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो प्लीज़ मेरे लिए ये करना। एंड इतने टाइम बाद मैं अपनी इस नावल के साथ कम बैक कर रही हूँ, जिसका टाइटल है फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स माई लाइफ। और ये नावल इस मंथ की ईजान वर्स्ट फीस्ट के लिए मैंने लिखा है। इस मंथ का जो टॉपिक है वो है सैड लव। आई होप कि आपको मेरी ये स्टोरी भी मेरी प्रीवियस स्टोरीज़ की तरह ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो चलिए इसी सस्पेंस को क्रिएट करते हुए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, एक और बात, काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि ये कैसे जाने वाली है। होप सो कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। तो चलिए अपनी सारी बातों को साइड करते हुए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ डैड, बस निकल रहा हूँ, अभी 1 घंटा है फ्लाइट को, मैं पहुँच जाऊँगा, फिक्र ना करें। एंड डैड, बस गा को बोल देना अपने हाथों का बना स्ट्रॉबेरी केक मेरे लिए बनाने को। मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। मैंने बहुत मिस किया उनके हाथों के बने स्ट्रॉबेरी केक का। उनके हाथों जैसा टेस्ट मुझे यूरोप में कहीं नहीं मिला इतने सालों में। एक शख्स जो कि अपने लगेज को बहुत ही एक्साइटेडली पैक कर रहा था, आखिर सालों बाद अपने अपनों के बीच जो लौट रहा था, तो खुशी और एक्साइटमेंट तो लाजमी थी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को अपने बैग में डाल रहा था और अपने डैड से बात किए जा रहा था। वो बोले ही जा रहा था कि फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वो सब ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन मैंने जो कहा उसका ध्यान रखना, ओके? एंड बॉडीगार्ड्स के साथ ही रहना, उनकी नज़रों से ओझल होकर किसी स्टंट के लिए मत निकल जाना, समझ आई? और अपने डैड की ये बात सुनकर उस शख्स की एक अनोए नज़र उसके बेड पर पड़े फ़ोन पर गई थी, जिसके लाउड स्पीकर से उसके डैड की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने अपने रुके हुए हाथ को फिर से चलाते हुए कहा, डैड प्लीज़, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तो मुझे इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देना बंद करें। अपने डैड की बात से चिढ़ते हुए वो शख्स अब सीढ़ियों पर तूफान की तेज़ी से अपने लगेज को संभाले आगे बढ़ रहा था अपनी मंजिल के सफ़र के लिए। और जो ही उस शख्स ने उस लग्जरियस पैलेस के मेन डोर को ओपन किया तो उसके कदम एकदम से अपनी ही जगह पर ठिठके थे। उसने एक गहरी नज़र सामने के मंजर पर डाली और फिर अपने हाथ में रखे फ़ोन की तरफ देखा, जिसमें से अभी भी आवाज़ें आ रही थी। हाँ, मालूम है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, मगर शैतान और चंचल तुम बच्चों से भी ज़्यादा हो। बाप मैं हूँ तुम्हारा, इसलिए अपने बड़े होने की खबर तुम मुझे मत दो। चुपचाप कार में जाकर बैठो। डैड, नॉट अगेन। वो शख्स जो कि अपने प्लान पर पानी फिरता देख फ्रीज होकर खड़ा हो गया था, आखिर को झिंझिलाकर बोल ही उठा। अपने सामने खड़ी उन ब्लैक कार्स और बॉडीगार्ड्स की लाइंस को देखकर एकदम से उस शख्स का दिमाग ठनका था। बेचारे ने क्या सोचा था और क्या हो गया। वो इतना एक्साइटेड था कि जाते जाते ही सही, लेकिन एक बाइक रेस तो जीत कर ही जाऊंगा। मगर उसके डैड ने उसके सभी जोश और जुनून के जज्बे और तैयारी पर बड़े इत्मीनान से ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी डाली थी। उन्होंने अपनी एक अथॉरिटेटिव वॉइस में कहा, अब बिना कोई बहस करे चुपचाप जाकर कार में बैठो, और खबरदार जो अपना दिमाग चलाने की कोशिश भी की तो। यह कहते के साथ ही फ़ोन पर टू टू की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसका मतलब था कि फ़ोन कट चुका है। और फिर क्या था, अपने अरमानों का बेदर्दी से कत्ल करते हुए वो भारी मन के साथ कार के अंदर बैठ गया था और एक के बाद एक करके वो 5 ब्लैक कार्स हवा को चीरते हुए पेरिस की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर जन्न जन्न करके दहाड़ने लगी थी। आफ्टर 15 मिनट इन चाइना, जब फ़ोन पर बजती रिंगटोन ने उस स्याह लिबास में मलबूस शख्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और फ़ोन उठाते के साथ ही सामने वाले ने उस शख्स के सर पर बम फोड़ा था। वो एकदम से शॉक्ड होकर अपनी चेयर से उठा था, अलबत्ता आंखों और आवाज़ों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुम लोग कहाँ थे बास्टर्ड्स? बॉस, हम अभी पहुँचे हैं, ट्रैफिक में फंसे थे और जब यहाँ पहुँचे तो पता चला मास्टर ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ये सुनकर उस शख्स का पारा जैसे और हाई हो गया। उसे ढूंढो और पता करो वो कहाँ गया है और कौन लोग लेकर गए हैं उसे। उसको ढूंढो और सही सलामत चाइना वापस लेकर आओ। अगर उसे ज़रा सी भी खरोच आई या तुम लोग खाली हाथ लौटे तो अपनी मौत का फरमान साथ लेकर आना। ये कहते के साथ ही एक तेज़ दहाड़ के साथ उसने फ़ोन को ग्लास वॉल पर अपनी पूरी ताकत से फेंका था और फ़ोन से हिट होते ही कांच की वो वॉल चकनाचूर होकर ज़मीन बोस हो चुकी थी। आफ्टर 1 ईयर, तुम लोग काम क्या कर रहे हो? अब तक उसका एक सुराग नहीं लगा हमारे हाथों। तुम सभी को जंग लग चुके हैं। तुम सभी को रिपेयरिंग की ज़रूरत है क्या? एक शख्स किसी स्याह बादल की तरह गरज रहा था। उस गरज की वजह से वो पूरा अंडरग्राउंड हंटर पैलेस खौफ से काँप रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स का गला सूखा हुआ था। एक खौफ और लर्जिश तारी थी उन पर और वो सभी
अपनी नज़रों को बस नीचे किए खड़े थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी अपनी नज़रों को उठाकर सामने वाले के सवालों का जवाब देने की। एक बार फिर से उस हंटर पैलेस की ब्लैक वॉल से उस शख्स की आवाज़ टकराई थी। मेंग्याओ, तुम इस कंट्री के सबसे तेज हैकर हो, फिर तुम्हारे अंडर होते हुए वो लोग कैसे लेकर गए उसे और तुम कुछ ना कर सके? तुम सभी को यहाँ मैंने सिर्फ शो के लिए नहीं रख रखा। अगले 24 घंटे के अंदर वो मुझे अपनी नज़रों के सामने चाहिए। ये कहते हुए वो शख्स अपनी खूंखार आवाज़ में दहाड़ा था, जिससे वहाँ खड़े सभी बस सूखे पत्ते की तरह कांप कर रह गए थे। उन सभी के बीच मेंग्याओ ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए कहा, बॉस, हमने जितने भी GPS ट्रैकर फिट करके रखे थे उन्होंने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से लोकेशन का हमें पता नहीं चल पा रहा। लेकिन हमारी कोशिश जारी है, उसका पता चल जाएगा। हमारे आदमी उन्हें हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो शख्स जैसे एकदम से उस अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया था। मुझे कोशिश नहीं, अंजाम चाहिए। मुझसे टक्कर लेने वालों का खौफनाक अंजाम। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे मेरी नज़रों के सामने लाओ, सही सलामत, वरना उसके कुछ होने की खबर तुम लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक अजाब लाएगी, जो तुम सभी के लिए मौत से भी बदतर होगी। डिड यू गेट दैट? वो शख्स अपने फुल ब्लैक सूट में अपने लंबे बालों की एक छोटी सी पोनीटेल बांधे उस गजबनाक गुस्से के साथ बहुत ही खौफनाक लग रहा था। आंखों में कोई चमक नहीं है, सिर्फ उसकी उन शिकारी जैसी आंखों में अपने शिकार को अपने पंजों तले दबोचकर उसकी कतरा कतरा सांस को पीने की ललक है। एक चिंगारी है जिसकी तपिश में वो इस कदर जल रहा है कि उसका वो वाइट फेस पूरी तरह से लाल हुआ पड़ा है। सांसों की रफ्तार हस्बे ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रही है। उसका वो ब्रॉड चेस्ट किसी भूखे खूंखार शेर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था और उसने अपने पंजों के नीचे उस सामने की टेबल को कदरे गुस्से और बल से दबा रखा था। इस वक्त वो अपने उस अंडरग्राउंड हंटर पैलेस की खौफनाकियत से भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था, जिसके ज़ेरे असर वहाँ खड़े सभी खौफ से लरज़ रहे थे। आफ्टर सम टाइम इन नाइट, वो शख्स अपने उस बड़े से पैलेस की फैली खामोशी में अपने भारी कदमों से ठक ठक की आवाज़ करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि इस पैलेस में लोग नहीं रहते, बल्कि यहाँ तो कदम कदम पर गार्ड्स का पहरा है और पैलेस के काम को देखने के लिए बहुत से नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। लेकिन मजाल है कि किसी से भी यहाँ की खामोशी में ज़रा सी खलल भी पड़ जाए। वो शख्स अपने भारी कदमों की रफ्तार को मेंटेन रखे चलता हुआ अपने रूम के सामने खड़ा था। उसने अपनी पॉकेट से एक की बाहर निकाली और डोर के लॉक में इंसर्ट करते हुए उसे ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करते ही एक क्लिक के साथ डोर का लॉक ओपन हो गया था। उसने हैंडल पर हाथ रखा और उसे पुश किया तो डोर ओपन हो गया। डोर ओपन होते के साथ ही एक तेज़ ठंड का एहसास उसके पूरे वजूद को हुआ था, मगर उसके बावजूद भी उसके एक्सप्रेशन में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। वो अपने उसी कोल्ड फेस को कैरी किए अंदर दाखिल हुआ था। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। AC की ठंडक से कमरा पूरा फ्रीज हुआ था। उसने अंदर दाखिल होते के साथ ही डोर वापस से लॉक कर लिया। उसने अपना वो ब्लैक कोट उतारा और उसे बेड पर थ्रो कर दिया और फिर अपनी स्लीव्स के बटन को खोलता हुआ वो खिड़की की तरफ बढ़ा और एक झटके से उन ब्लैक कर्टन्स को खोल दिया। कर्टन्स के हटते ही उस 14वीं के चांद की रोशनी उसके पूरे सरापे पर पड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी उस खूबसूरती में और इजाफा हुआ था। उसकी आंखें भले ही खाली और ठंडी थी, मगर उस चांद की रोशनी के पड़ते ही एक चमक उभरी थी उनमें। उसने एक नज़र उस चांद को देखा और फिर अपनी कफलिंग्स को फोल्ड करता हुआ वो पीछे मुड़ा और उसकी नज़र एक ज़ख्मी सरापे पर पड़ी जो उसे कदरे हद तक सुकून पहुंचा गई थी। एक शख्स अपने घुटनों को अपने सीने से भींचे बैठा हुआ था और उसने अपने एक हाथ से उस चांद की रोशनी को जैसे कवर करने की कोशिश की थी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उसकी आंखें उस चांद की रोशनी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। वो चुभ रही थी उसकी आंखों में, इसलिए वो उस रोशनी को अपने हाथों से कवर करने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स अपनी स्लीव्स को फोल्ड करता हुआ कदम कदम चलता उस शख्स के सामने आ खड़ा हुआ, जो अब सामने बैठे शख्स और उस चांद की रोशनी के दरमियान दीवार का काम कर रहा था। उस बैठे हुए शख्स ने उस साये को खुद पर महसूस करके अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने से हटा लिया और दोनों हाथों के दरमियान अपने कांपते वजूद को समेटने की कोशिश करने लगा। वो लाख कोशिश कर ले खुद को उस ठंड से बचाने की, मगर उसकी वो हाफ नेकेड बॉडी किसी भी सूरत हाल
एसी की उस सर्द हवाओं का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उस शख्स ने एक नज़र उस सोफे की टेबल पर पड़ी उस फूड ट्रे को देखा जिसमें खाना अभी भी वैसे ही रखा हुआ था, उसको हाथ तक नहीं लगाया गया था। उस शख्स ने सामने बैठे शख्स के लेवल तक बैठते हुए कदरे नर्म और पुरसुकून लहजे में कहा, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? आज तकरीबन 1 हफ्ते बाद उस शख्स ने सामने बैठे शख्स का दीदार किया था, जो पिछले हफ्ते की बनिस्बत आज कदरे हद तक नीला पड़ा हुआ था। उसके होंठ सूख कर बिल्कुल जामुनी हुए पड़े थे और उस ठंड की शिद्दत से थरथरा रहे थे। उस शख्स ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपनी पाम से उसका चेहरा टच किया, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। उस शख्स का खून ठंड की शिद्दत से बिल्कुल जम जाने को था कि उस शख्स के लम्स की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करके उसे अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। उसने जैसे उस गर्माइश को और महसूस करने की चाह में उस गर्म हथेली को अपनी नेक के दरमियान भींचने की कोशिश की, मगर क्या उसकी सर्दी इतनी सी गर्माइश से कम होने वाली थी? तो नहीं, वो अभी भी उसी तरह से कांप रहा था। उस शख्स ने एक भरपूर निगाह उस शख्स के कांपते हुए पूरे वजूद पर डाली थी। एक बहुत ही परफेक्ट बॉडी और खूबसूरत वजूद का मालिक था वो, मगर उसकी इस खूबसूरती पर सामने बैठे वहशी ने बहुत से जख्मों के निशान छोड़े थे, जिनमें से खून रिश्ते रिश्ते अब जम चुके थे। उसने अपने थंब से उसके रुखसार पर लगे जख्म को टच किया, जो उसने पिछले हफ्ते अपनी बेल्ट की ज़र्ब से उसके चांद जैसे खूबसूरत चेहरे पर यह दाग का निशान छोड़ा था। उन जख्मों से होते हुए उस शख्स की निगाह अब उसकी खुलती बंद होती आंखों की तरफ थी। शायद वो उस ठंड की शिद्दत के ज़ेरे असर नीम बेहोशी में था। उस शख्स ने अपने थंब से उसके थिक आईलैशेस को टच किया था, जो कि उसके छूने के असर से मूव हुई थी। उस शख्स ने जब महसूस किया कि अब शायद उसकी हालत मौत की कगार पर है, तो उसने साइड टेबल से उस एसी के रिमोट को उठाकर फुल -डिग्री में चलते एसी को ऑफ कर दिया और गर्म हीटर को ऑन कर दिया। आफ्टर 15 मिनट, जब गर्म हीटर की तपिश उस कमरे की ठंडक को मिटाते हुए उसके ठंडे वजूद को पुरसुकून करने लगी, तो उस शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता नीम बेहोशी में डूबती अपनी आंखों को ओपन किया। 10 से 15 सेकंड लगे थे उसे अपने विज़न को क्लियर करने में। विज़न क्लियर होते के साथ ही उसे अपने सामने बैठे जिस वजूद का एहसास हुआ, वो उसे पूरी तरह होश में आने पर मजबूर कर गया। अपनी गर्दन पर उसका हाथ महसूस करते के साथ ही उसने उसे दूर हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, दूर दूर हटो, दूर हटो मुझसे। मगर उस शख्स पर उसकी किसी भी बात का असर ना हुआ, ना ही वो उसके चट्टान जैसे वजूद को इंच भर भी हिला पाया। उस शख्स ने जैसे अपनी पकड़ को उसकी गर्दन पर मजबूत करते हुए अपने उसी नर्म लहजे में कहा, खाना क्यों नहीं खाया? खाना खाओ। उस शख्स ने जैसे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, जिसकी पकड़ रफ्ता रफ्ता और सख्त होते जा रही थी। मुझे नहीं खाना, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। उस शख्स ने जैसे एकदम से उसे गले से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, अपने फेस के बिल्कुल करीब, और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों नहीं खाना? खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। उसके एक्शन में भले ही गुस्सा, बेरहमी और खौफनाकियत थी, मगर उसका लहजा काफ़ी हद तक पुरसुकून था। उसने अपनी उसी नर्म आवाज़ में कहा, खाना खा लो वरना मर जाओगे। उस शख्स ने जैसे अपनी जंजीरों में जकड़े हाथों से अपने गले को उसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मौत दे दो, मुझे मौत चाहिए, लेकिन मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। उसने अपने गुस्से और नफरत भरी आंखों से सामने वाले की आंखों में देखते हुए कहा, जिसमें खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि बगावत की चिंगारी फूट रही थी। उसकी आंखों में खुद के लिए खौफ न देखकर सामने वाले का पारा हाई हुआ था, जिसका असर उसकी पकड़ पर दिखा था। उसने और कसकर अपनी पकड़ मजबूत की थी और सामने वाले की एक और सांस की डोर को कस गया था। उसने अपनी उसी नर्म लहजे में कहा, ऐसे कैसे? खाना तो तुमको खाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और रही बात मौत की, तो वो मेरी कैद में है। मैं जितना चाहूँगा वो सिर्फ उतने ही करीब तुम्हारे आएगी, मगर तुमको छूने की उसे अभी इजाज़त नहीं है। ये कहते हुए उसने खाने की ट्रे से एक स्पून उठाया, उसको फूड से फिल किया और उसकी गर्दन को छोड़ते उसके जबड़े को कस कर पकड़ा और ज़बरदस्ती फूड से भरा स्पून उसके मुंह के अंदर करते हुए कहा,
کھاؤ اسے۔ مگر سامنے والا اب بھی اسے کھا نہیں رہا تھا۔ اس شخص نے اس کے جبڑے کو کستے ہوئے اپنی اتھارٹیٹیو وائس میں کہا، میں نے کہا کھاؤ اسے۔ سامنے والے شخص نے اپنی فل فورس کا استعمال کرتے اس کی پکڑ سے اپنے جبڑے کو آزاد کراتے ہوئے پش کیا، اور جتنا بھی فوڈ اس نے اس کے منہ میں ڈالا تھا وہ سبھی اس نے باہر تھوک دیا، اور یہ کر کے وہ سامنے والے کے غصے کے آخری پوائنٹ کو ٹچ کر گیا تھا۔ اس نے اسپون کو واپس سے ٹرے میں رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، 2 سے 3 قدم پیچھے ہوا اور ایک ہوا میں لٹکتی ہوئی چین کو پل کیا تو سامنے بیٹھا زخموں سے چور وجود اٹھتا چلا گیا۔ وہ اس حد تک اوپر ہو گیا تھا کہ صرف اس کی پیروں کی انگلیاں ہی زمین سے ٹچ ہو رہی تھی، اور پھر اس نے اپنے بیلٹ کو انبکل کرنا شروع کیا۔ وہ پہلے سے زخمی وجود اسے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے لیدر بیلٹ کو نکالتا دیکھ اس کے پورے جسم میں ڈر کی لہر دوڑی تھی، اور پھر کیا تھا، وہ اس بیلٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے آگے بڑھا اور بے دردی سے اس کی کھال ادھیڑنے لگا۔ خاموشی میں ڈوبا کمرہ اب چیخوں پکاروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ بنا رکے اپنی ایک ایک ضرب لگائے جا رہا تھا اور اس کے سوکھتے زخموں کو تازہ کر گیا تھا۔ ابھی ہفتے پہلے کے زخم ٹھیک سے بھرے بھی نہ تھے کہ ان میں سے ایک بار پھر سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ کافی ٹائم تک لگاتار اس کے زخمی وجود کو چھلنی کرنے کے بعد کہیں وہ رکا تھا، کیونکہ اس کا نڈھال شریر بے ہوشی کے سپرد ہو چکا تھا اور وہ ان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوا میں جھولنے لگا تھا۔ اس نے بیلٹ وہیں صوفے پر پھینکی اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اسے اس کی کمر سے ہولڈ کرتا چین لوز کی تو وہ گرنے لگا، مگر اس کا پورا باڈی ویٹ اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا اور اسے آہستہ سے نیچے زمین پر لیٹا دیا، اور ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے پورے چہرے پر ڈال دیا۔ پانی پڑتے کے ساتھ ہی اس کی بند آنکھیں حرکت کرنے لگی، وہ ہوش میں آنے لگا تھا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا کھڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اپنے اسی کولڈ ایکسپریشن کو مینٹین رکھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے چیسٹ پر باندھے، خالی آنکھوں سے بند کھڑکی کے گلاس سے سامنے گارڈن میں لگے پھولوں کو چاند کی چاندنی سے شرما کر ہوا میں لہراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ البتہ پسینے کی بوندوں نے ماتھے پر جگہ لی تھی، اور اس کے پیچھے زنجیروں میں جکڑا وجود جس نے اب اپنی آنکھیں کھول لی تھی، اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسوؤں کے موتی لگاتار گر رہے تھے۔ اس کے اندر موو ہونے کی بھی سکت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیلنگ کی طرف اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے کہا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ لان وانگ ہیبو؟ اس کی آواز قدرے حد تک دھیمی تھی، اتنی کہ اس خاموشی میں بھی اس کی آواز ایبو کے کانوں تک بمشکل ہی پہنچی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح جواب میں خاموشی ہی ملی تھی۔ اس نے پھر سے اپنی اسی دھیمی آواز میں کہا، مجھ سے میرے کس جرم کے بدلے ایسی سزا کی ادائیگی کر رہے ہو؟ مجھے بتا دو کہ میرا کیا جرم ہے، تاکہ میرے درد میں مجھے سکون آ جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ میں کہاں تمہارا مجرم ہوں، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں تو تم کو جانتا بھی نہیں تھا، تو میں نے کہاں تم کو چوٹ پہنچائی ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے وصول کر رہے ہو؟ اتنا سب سننے کے بعد بھی وہ شخص ویسے ہی کھڑا تھا۔ تھوڑے ٹائم بعد اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے۔ یہ کہتا وہ پلٹا تھا، وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ سے اس کے بازوؤں کو اپنے پنجے میں جکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر بیٹھا دیا۔ وہ جو صرف سوالیہ نظروں سے اس سنگ دل وجود کو دیکھ رہا تھا، اس اچانک ایکشن سے اس کے پورے وجود میں درد کی گہری ٹیسیں ابھری تھی اور ایک تیز درد بھری کراہ اس کے منہ سے نکلی تھی، مگر سامنے والے پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے فوڈ ٹرے سے کھانے کے باؤل کو اٹھایا اور اس میں سے چمچ پر چمچ سامنے والے کے منہ میں ڈالتا چلا گیا، اور سامنے والا اسے روک بھی نہیں پایا کچھ بھی کرنے سے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس بے رحم سنکی سے لڑنے کی اب اس میں بالکل طاقت نہیں بچی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد ایبو نے باؤل وہیں ٹیبل پر رکھا اور اپنے شرٹ کے بٹن کھولتا واش روم میں چلا گیا فریش ہونے کے لیے، اور وہ زخموں سے چور وجود اس دیوار سے خود کو ٹیکے ایبو کو وہاں سے جاتا دیکھتا رہا اور اپنی لاچاری پر آنسو بہاتا رہا، کیونکہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آن دا ادر سائڈ ان شاو پیلس، جہاں ایک شخص بہت ہی غصے میں اپنے گارڈز پر چیخ رہا تھا، تم سب کر کیا رہے تھے؟ وہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود باہر کیسے نکلا؟ ان میں سے ایک گارڈ نے ڈر سے کانپتے ہوئے کہا،
बॉस, जो गार्ड उसके कमरे में खाना लेकर गया था वो उस बॉडी गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहनकर भागा है और इसी वजह से उसको किसी ने भी नहीं पहचाना और वो भागने में कामयाब हो गया। ये सुनकर शाओ फैंग मियान ने कदरे गुस्से से अपने जबड़े को भींचते हुए कहा, और उस ट्रक का क्या हुआ? इससे पहले कि उनमें से कोई भी फैंग मियान के सवालों का जवाब दे पाता, शीचिंग ने रूम में एंटर होते हुए कहा, आप उसकी फिक्र ना करें डैड, वो अपनी जगह पहुंच चुका है। मेरी उनसे अभी बात हुई है। शीचिंग ने वहां मौजूद सभी गार्ड्स को एक इशारे से जाने का ऑर्डर दिया और वो इशारा मिलते के साथ ही वो सभी उस रूम से बाहर निकल गए थे। अब उस रूम में सिर्फ फैंग मियान और उसका बड़ा बेटा शीचिंग ही थी। फैंग मियान ने एक नज़र शीचिंग की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ने लगा। फैंग मियान को बिना कुछ बोले वहाँ से जाता देखकर शीचिंग ने कहा, डैड, जब आपको पता है कि इन सब के पीछे उस लान वांग यीबो का हाथ है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? ये कहते हुए शीचिंग कदरे गुस्से में लग रहा था। फैंग मियान ने शीचिंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम भूल रहे हो कि वो भी एक माफिया है? भले ही वो मेरी तरह माफिया वर्ल्ड पर राज ना करता हो, लेकिन वो बिजनेस वर्ल्ड पर राज करता है। वो कोई आम आदमी नहीं है। वो बस एक मौके की तलाश में है कि कब उसे वो मौका मिले और वो मुझे इस चेयर से हटाकर इस माफिया वर्ल्ड पर राज कर सके। और भूलो मत कि हमारा जहान उसके पास है। एग्जैक्टली डैड, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जब हमें पता है कि हमारा जहान उसके पास है तो उसके बावजूद हम क्यों हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं? आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? फैंग मियान ने जैसे गुस्से से चीखते हुए कहा, क्योंकि मेरा बेटा उसके पास है और मेरी तरफ से उसके खिलाफ उठाया एक गलत कदम मेरे बेटे की जान ले सकता है और हम किसी भी कीमत पर भी अपने जहान को नहीं गंवा सकते। वो एक पागल सनकी है। बिना सबूत के मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता और बड़ी मुश्किलों के बाद वो सबूत हमारे हाथ लगा था, लेकिन इन सभी की लापरवाही की वजह से हमने उससे भी हाथ धो दिया। शीचिंग ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड, तो हम आखिर कब तक ऐसे ही चुप बैठने वाले हैं, सब कुछ जानते हुए भी? यह कहते हुए शीचिंग बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को गुस्से से भींच रखा था। फैंग मियान ने शीचिंग की तरफ देखते हुए कहा, जब तक हमारे हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं लग जाता। अपने डैड के मुंह से ये बात सुनकर शीचिंग के लिए वहां अब एक पल के लिए भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त। इसलिए वो अपने जबड़े को भींचता वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। शीचिंग को वहां से जाता देखकर फैंग मियान ने शीचिंग को आवाज लगाई, शीचिंग। और अपने डैड की आवाज पर शीचिंग के गुस्से से बढ़ते तेज कदम एकदम से रुके थे, लेकिन वो पलटा नहीं था। फैंग मियान ने कहा, इस बात का ध्यान रहे, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि जहान लान वांग यीबो की कैद में है। और अपने डैड के मुंह से ये बात सुनकर शीचिंग का जैसे गुस्से से और पारा हाई हुआ था। उसने अपने जबड़े को कसकर भींचा और बिना कुछ बोले वहां से तेजी से बाहर निकल गया। शीचिंग अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने भाई को लान वांग यीबो की कैद से उसे छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसे उसके डैड की समझ नहीं आ रही कि उसके डैड आखिर चाहते क्या हैं, या फिर वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब लान वांग यीबो उनके जहान को जान से मार देगा। क्या वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आफ्टर वन डे इन वांग पैलेस। जंगलों के बीचों बीच ये बहुत ही बड़ा और लग्जरियस पैलेस था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। ये वांग पैलेस यीबो के डैड का बनाया हुआ एक सीक्रेट पैलेस था। ज़ाहिरी तौर पर तो ये नॉर्मल पैलेस की तरह था, लेकिन इसके अंडरग्राउंड एक और डार्क पैलेस था, जिसे लान वांग यीबो ने हंटर पैलेस का नाम दिया था, जिसके अंदर वो अपने सभी माफिया वर्क को पूरा किया करता था। इस वक्त भी वो अपने आदमियों के साथ उसी हंटर पैलेस में मौजूद था। उसकी निगाहें फुल फोकस के साथ सामने की कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी हुई थी और मेंग्याओ की उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर फुर्ती के साथ मूव हो रही थी। मेंग्याओ फुल फोकस के साथ उस हैकिंग प्रोसेस में लीन था। पूरा रूम खामोशी में डूबा हुआ था। तभी अचानक मोबाइल की रिंगटोन ने वहां की खामोशी में खलल डाली थी। यीबो ने अपनी पॉकेट से फ़ोन बाहर निकाला और फ़ोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर वो थोड़ा क्यूरियस हुआ था, और उसी क्यूरियोसिटी के साथ उसने उस अननोन कॉल को पिक किया। कॉल पिक करते के साथ ही वांग यीबो की आंखें बड़ी हुई थी, क्योंकि फ़ोन की दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ ने वांग यीबो को एक पल के लिए चौंकाया था। यीबो ने सपाट लहजे में सवाल किया था, हाओशुआन, तुम कहाँ हो?
फ़ोन की दूसरी तरफ से हाओ शुआन ने कहा, बॉस मैं इस वक्त वापस नहीं आ सकता। मेरे पीछे शाओ फैंगमियान के आदमी लगे हुए हैं। अगर मैं इस वक्त वापस आया तो उन्हें हमारी खुफिया जगह के बारे में पता चल जाएगा। ईबो ने एक सख्त लहजे में एक बार फिर से वही सवाल दोहराया। मैंने पूछा तुम हो कहाँ इस वक्त? हाओ शुआन ने कहा, बॉस मैं इस वक्त एक छोटे से गांव में हूँ। जब मैं आपकी बताई जगह के मुताबिक उस ड्रग से भरे ट्रक को लेकर जा रहा था तो शाओ फैंगमियान के आदमियों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया था और मुझे शाओ पैलेस में कैद करके रखा था। बड़ी मुश्किलों के साथ मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ और शाओ फैंगमियान ने उस ट्रक को थर्ड पार्टी तक पहुँचा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किलों से वहाँ से निकल पाया। ये सुनकर गुस्से से ईबो का पारा हाई हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। ईबो ने अपने जबड़े को भींचते हुए अपने मन में कहा, एक बार फिर से तुमने खुद को बचा लिया फैंगमियान, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। बहुत जल्द तुम्हारा भी वक्त आएगा। बस वेट करो मेरे अगले वार का। ये सोचते के साथ ही ईबो ने एक लंबी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना और ध्यान रहे कि उनके हाथ ना लगना दोबारा। बाकी मैं संभाल लूँगा। हाओ शुआन ने कहा, ओके बॉस। और ईबो की तरफ से ये ऑर्डर मिलते के साथ ही हाओ शुआन ने कॉल कट कर दी थी। एक्चुअली जिस ड्रग से भरे ट्रक को ईबो ने हाईजैक करवाया था वो ट्रक फैंगमियान ने यूएस के एक बहुत ही बड़े अंडर माफिया वर्ल्ड के डॉन को भेजा था और फैंगमियान की यूएस के माफिया डॉन के साथ ये डील बहुत ही ऊंचे लेवल पर हुई थी, जिसे ईबो रद्द करना चाहता था ताकि माफिया डॉन को लगे कि फैंगमियान ने उनके साथ धोखा किया है और वो उन पर अटैक कर दे। लेकिन ईबो का ये प्लान कामयाब नहीं हो सका। ईबो ने अपने फ़ोन को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचते हुए मेंग्याओ से कहा, जल्द से जल्द इस काम को पूरा करो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता उनकी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। ईबो की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मेंग्याओ ने कहा, यस बॉस, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इसे हैक कर लूँगा। और ये कहते हुए वो और तेज़ी से कंप्यूटर की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को मूव करने लगा था। आफ्टर सम टाइम इन नाइट, ईबो पैलेस के कॉर्नर में बने बार काउंटर पर बैठा हुआ था। वाइन की बोतल्स उसके सामने रखी हुई थी जिनसे वो अपने गिलास को फिल कर रहा था और एक के बाद एक गिलास खाली किए जा रहा था। मगर उस वाइन का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि गुजरे हुए वक्त की तलखियाँ उसके वजूद पर जैसे किसी कोड़े की तरह बरस रही थी। वो पसीने से पूरी तरह तरबतर हुआ पड़ा था। आंखों की सुर्खी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो कैसे खुद को जब्त किए बैठा है। जब भी उसकी नज़रों के सामने उसके गुजरे हुए वक्त का वो हिस्सा होकर गुजरता था जिसे वो याद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गुजरा हुआ वक्त उसे आज भी 1000 टुकड़ों में तोड़ता है और उसकी अज़ियत आज भी उतनी ही महसूस होती है जितनी उसे सालों पहले हुई थी। लेकिन वो उसे भूलने की भी इजाज़त नहीं देता खुद को, क्योंकि वो जानता है यही चीज़ उसे आज यहाँ तक लेकर आई है, क्योंकि वो अपना गुजरा हुआ वक्त नहीं भूला, वो अपना कल नहीं भूला। और जो शख्स अपना कल नहीं भूलता उसे इस बात का एहसास होता है कि उसे पहुंचना कहाँ है, उसका मकसद क्या है। और अपने मकसद को हासिल करने के लिए ईबो ने आज तक अपने गुजरे हुए वक्त को ज़िंदा करके रखा हुआ है, जिसे वो वक्त वक्त पर खुद को याद दिलाता रहता है। या फिर ये कहें कि वो गुजरा हुआ वक्त उसे याद दिलाता है कि उसका मकसद क्या है, उसने क्या खोया है। और आज भी वही दिन था जब गुजरे हुए वक्त की परछाई ईबो की नज़रों के सामने से होकर गुजर रही थी, जहाँ एक लेडी अपने बच्चे को अपनी बाहों में भींचे हुए थी। वो 10 साला मासूम बच्चा डर से सहमा हुआ उस लेडी को जकड़े हुए था। उसकी आंखों के आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस बैटल ग्राउंड में गोलियों की धमक से उस 10 साला बच्चे का वजूद खौफ से लरज़ रहा था। उसकी माँ की बाहें ही इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा महफूज महसूस हो रही थी, जिसमें वो कदरे हद तक सिमटा हुआ था। और वो लेडी अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेटे हुए थी। वो उसे महफूज करने की कोशिश कर रही थी। बारिश अलग अपना कहर उन पर ढाए जा रही थी। दोनों ही बारिश के पानी से लबरेज खौफ की शिद्दत में वहाँ खड़े थे। तभी अचानक गन फायर की तेज़ आवाज़ से उस 10 साला मासूम बच्चे ने खौफ से अपनी आंखें बंद की थी और अपनी माँ की बाहों में और सिमटा था। मगर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब उसे अपनी इर्द गिर्द हायल बाहें ढीली पड़ती महसूस हुई थी।
देखते ही देखते वो बेजान पड़ता वजूद उस मासूम बच्चे की पकड़ से छूटता ज़मीन बोस हुआ था और वो नन्हा मासूम बच्चा उस बैटल ग्राउंड में तन्हा खड़ा रह गया था, क्योंकि उसका मुहाफिज अपनी आंसुओं से डबडबाई आंखों में अपने बच्चे की तस्वीर कैद किए उन्हें हमेशा के लिए बंद कर गया था। उस बच्चे ने अपने सामने खड़े शख्स के हाथों में गन देखकर एकदम से खुद को अकेला और बेसहारा महसूस किया था, और वो उसी महफूज बाहों की तलाश में एकदम से अपनी बेजान माँ के वजूद से चिमटा था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी माँ को आवाज़ें लगा रहा था कि वो उठें और उसे बचा लें, अपनी बाहों में समा लें, उसे महफूज कर लें। उसे डर लग रहा है, वो अकेला हो गया है। वो रो ही रहा था और अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक फैमिलियर वॉइस ने उस बच्चे को आवाज़ लगाई थी। उस बच्चे ने पलटकर उस आती हुई आवाज़ की जानिब देखा था और उस सहरा में किसी अपने को देखकर एकदम से उसका बंद होता दिल धड़का था। उसने अपने उसी रोती हुई आवाज़ में अपने डैड को पुकारा और वो खून से लिपटा शख्स दौड़ता हुआ उस मासूम बच्चे के करीब आया था। उसने एक नज़र सामने पड़ी उस बेजान वजूद की तरफ डाली और फिर उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाते उसने सामने वाले को जान से मारने की धमकी दी, जो उस पर गन पॉइंट किए खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात नजर नहीं आ रहे थे। उस शख्स ने अपनी गन लोड करते हुए दोबारा सामने वाले पर पॉइंट की थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे गुस्से से अपने जबड़े को भींचे अपने 10 साला बच्चे को अपनी बाहों में समेटे तेजी से वहां से निकल गया। और वो मासूम बच्चा पलट पलट कर अपनी माँ के लिए रोता रहा और चीखता रहा। लेकिन उस बैटल ग्राउंड से एग्जिट करने से पहले उस बच्चे की एक नज़र उस सामने खड़े वजूद पर पड़ी थी, जिसे वो अब मरते दम तक नहीं भूलने वाला था। ये याद करते के साथ ही वो एकदम से अपने होश में वापस आया था। उसने गुस्से से चीखते हुए उन सभी वाइन की बोतल्स को एक ही झटके में ज़मीन बोस किया और वो चकनाचूर होकर ज़मीन पर बिखरती चली गई। वो इतना गुस्से में था कि गुस्से की शिद्दत से उसकी रगें तन गई थी और उसके हाथ में रखा उसका वो वाइन ग्लास टूटता उसके हाथ में पेवस्त हो गया और उसके हाथ से खून बहता उस वाइट काउंटर को सुर्ख करने लगा। ईबो ने गुस्से से काउंटर पर हिट करते हुए कहा, फैंग मियान, तुम्हें अपने एक एक के गुनाह का हिसाब चुकाना होगा। मैं तुमसे अपनी मोहम का वो हक लेकर रहूंगा जिस पर तुम काबिज हो, जिस पर मेरी मोम का हक था और तुमने उन्हें धोखे से मारकर उनसे उनका हक छीना है। मैं तुमसे अपनी मोम का हक लेकर रहूंगा। तुम्हें मेरी मोम के खून का बदला चुकाना होगा। बस इंतजार करो उस दिन का जिस दिन मैं तुम पर तुम्हारी मौत बनकर टूटूंगा। बस इंतजार करो फैंग मियान, बस इंतजार। ये कहते हुए गदरे गुस्से की जब्त को आजमाता ईबो अपनी मुट्ठियां भींच गया था। उसकी सुर्ख आंखों से वो लावे की तरह दहकता हुआ आंसू उसके रुखसार पर लुढ़क गया। टाइम स्किप एट मॉर्निंग, जहां ईबो एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक करके उस अंडरवर्ल्ड माफिया वेन के ऑफिस से बाहर आ रहा था। उस मीटिंग में चाइना के सभी माफिया शामिल हुए थे, इसलिए ईबो भी आज यहाँ मौजूद था। वो अपने माफिया बॉडीगार्ड्स के साथ तेज कदमों के साथ चलता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था, जभी अचानक पीछे की तरफ से आती हुई एक फैमिलियर वॉइस ने ईबो के तेजी से बढ़ते हुए कदम पर रोक लगाई थी और वो वहीं ठहर गया था। अलबत्ता उसके पूरे वजूद ने एक इनविजिबल चिंगारी छोड़ी थी और उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया था जब वो फैमिलियर वॉइस एक बार फिर से ईबो के कानों से टकराई थी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर वांग, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ईबो अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ पीछे मुड़ा। उसने एक गहरी नज़र सामने खड़े शख्स पर डाली जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ खड़ा था। ईबो ने स्ट्रेट फेस एक्सप्रेशन के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, थैंक यू फॉर योर कांग्रेस मिस्टर श्याओ, लेकिन लगता है आपको इस मीटिंग में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, वरना इस डील को क्रैक करने के लिए लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे होते। ईबो की यह बात सुनकर फैंग मियान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल उभर आई। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन जूनियर्स को भी मौका देना चाहिए हम सीनियर्स को कभी कभी कांग्रेचुलेट करने का। यह सुनकर ईबो ने फैंग मियान की तरफ देखते हुए कहा, आप इसकी फिक्र ना करें मिस्टर श्याओ, आज की मीटिंग देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अब मैं ये मौका आपको बार बार देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जितना हारना था मैं हार चुका। अब जीतने की बारी है, क्योंकि इस जीत पर मेरा हक है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर कांग्रेट्स। अब मैं चलता हूँ
क्योंकि मेरा भी बहुत से काम हैं जो कि सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन पर मुझे वर्क करना है। आई होप कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। सी यू। ये कहता हुआ ईबो वहाँ रुका नहीं था। वो टर्न होता तेज़ तेज़ कदम चलता अपने कार के अंदर आकर बैठ चुका था। फैंग मियान ईबो को अपनी सस्पिशियस नज़रों से जाता हुआ देख रहा था, क्योंकि वो ईबो की बातों का मतलब अच्छे से समझ गया था कि उसका इशारा किस तरफ है। उसने अपने पीछे खड़े गार्ड से कदरे धीमे लहजे में कहा, कोई खबर मिली? गार्ड ने अपने स्ट्रेट फेस के साथ फैंग मियान की तरफ हल्का सा लीन होते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा, नहीं बॉस, वो अंदर तो एंटर हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। यह सुनकर फैंग मियान ने अपने जबड़े गुस्से से भींचे थे और वो ईबो की जाती हुई कार को बस देख रहा था। आफ्टर सम टाइम, जहाँ सूरज अपने उजाले को समेटे धीरे धीरे ढल रहा था और रात अपनी तारीकी को फैलाते चाँद के इस्तकबाल में मसरूफ़ थी, वहीं एक शख्स उस तारीक कमरे की दीवार से टेक लगाए अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। उसकी नज़रें अनंत में कहीं टिकी हुई थी। जब ही एक थड की आवाज़ से वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया था। एक शख्स अपने भारी कदमों के साथ उस रूम में एंटर हुआ। उस शख्स के उस कमरे में मौजूद होने भर का एहसास था कि सामने वाले के शरीर में एक डर की लहर दौड़ी थी। उस शख्स ने कमरे में एंटर होते के साथ स्विच बटन को प्रेस किया और बटन के प्रेस होते ही एक ब्लू एंड रेड लाइट से पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। लाइट ऑन करके वो पीछे मुड़ा तो सामने बैठा वजूद खुद में सिमटा हुआ दिखा। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़े फूड पर गई, जो आज भी वहाँ वैसे ही मौजूद था। उस शख्स ने उसे हाथ लगाने की भी ज़हमत ना की थी और एक बार फिर से वही सवाल दोहराया गया था, खाना क्यों नहीं खाया? सामने से एक सपाट लहजे में जवाब आया, मुझे नहीं खाना। ईबो ने कहा, क्यों नहीं खाना? एक बार फिर से उसी सपाट लहजे में जवाब आया, मुझे भूख नहीं है। ईबो ने एकदम से उस शख्स के सामने बैठते हुए उसका जबड़ा अपने पंजों में जकड़ा था और कदरे धीमे और पुरसुकून लहजे में कहा, यू थिंक दैट यू कैन चूज़? उस शख्स ने अपनी जंजीरों से बंधे हाथों से उस मजबूत गिरफ्त से अपने जबड़े को आज़ाद करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, मैं चूज़ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। उसका लहजा कदरे गुस्से और सफाकियत से भरा था। उसका ये लहजा देखकर सामने वाले का गुस्सा और ट्रिगर हुआ था। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया और उसके बालों से उसको पकड़कर खींचते हुए अपने फेस के बिल्कुल करीब करते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम कहोगी और मैं सुनूंगा? क्या तुमको कुछ कहने की भी इजाज़त है? तुमसे जो कहा जाए सिर्फ उतना करो, ये खाना खाओ। ये कहते हुए ईबो ने उस फूड से भरे बाउल को उसके सामने रखा। उस शख्स के गुस्से भरी लाल आंखों में देखते हुए उस शख्स को एक पल के लिए खौफ आया था, लेकिन शायद वो आज अपने अंदर मजबूत इरादा किए बैठा था। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तो मतलब नहीं खाऊंगा। ये कहते हुए वो भी बजीद हुआ था, मगर सामने वाला भी उसकी सोच से बढ़कर था। उसने अपने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं खाओगे? उस शख्स ने कहा, नहीं खाऊंगा। और फिर क्या? उसके जवाब पर ईबो ने तुरंत एक्शन लिया था। उसने उसके सर को उसके बालों से पकड़े उस फूड से भरे बाउल में ज़बरदस्ती डालते हुए कहा, आई सेड ईट। और अचानक इस हमले पर उस शख्स का पूरा वजूद कांपा था। ईबो ने उसकी गर्दन को कसकर प्रेस कर रखा था। अब उस पोरेज से भरे बाउल में उस शख्स को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। कुछ सेकंड बाद ईबो ने उसे उसके बालों से पकड़े ही ऊपर किया था, जो अब अपनी सांसों के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ईबो ने उसे अपने फेस के बिल्कुल करीब करते हुए कहा, तुम्हें अब तक इसकी आदत नहीं हुई? तुम्हें तो अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। ये सुनकर उस शख्स के ज़ब्त का बांध टूटा था। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो लान वांग ईबो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मेरी क्या गलती है? किसकी सजा दे रहे हो मुझे? मेरी क्या गलती है, बताते क्यों नहीं? वो जो अब तक बिल्कुल शांत था, सामने वाले की चीखों पर उसका भी ज़ब्त टूटा था। नशे में डूबी उसकी लाल आंखें गुस्से की शिद्दत से और सुर्ख हुई थी। उसने अपने जबड़े को भींचते हुए कदरे गुस्से और नफरत भरे लहजे में कहा, क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो आखिर तुम? कि आखिर तुम्हारी क्या गलती है? तो सुनो कि तुम्हारी क्या गलती है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम शाओ फैंग मियान के बेटे हो। उस शाओ फैंग मियान के जिसने मेरी माँ को जान से मारा है।
मेरी माँ का कत्ल किया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस माफिया वर्ल्ड पर राज कर सके, क्योंकि मेरी माँ इस माफिया वर्ल्ड की क्वीन थी, वो राज करती थी इस माफिया वर्ल्ड पर। और तुम्हारे बाप ने उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि वो उस गद्दी को हड़प सके और इस माफिया वर्ल्ड पर राज कर सके। तुम्हारे बाप ने सिर्फ इस माफिया वर्ल्ड पर राज करने के लिए मुझे लावारिस कर दिया, मुझे बिना माँ का कर दिया, मुझसे मेरी माँ छीन ली तुम्हारे बाप ने। और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती यही है कि तुम शाओ फेंगमियान के बेटे हो। सुना तुमने, शाओ वीजान, क्योंकि तुम इस शाओ फेंगमियान के बेटे हो। ये कहते हुए ईबो जहान की आंखों में देखते हुए कदरे गुस्से और बल से चीखा था। जहान जो अपनी आंसुओं से डबडबाई आंखों से ईबो की आंखों में देख रहा था, उसे जैसे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ था। उसे जैसे सदमे और गैर यकीनी से ईबो की गुस्से से लाल आंखों में देखते हुए अपनी कपकपाती हुई आवाज में कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे डैड ऐसे नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो लान वांग ईबो, मेरे डैड ऐसे नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए जहान ईबो पर चीखा था, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ईबो जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। ईबो ने जहान के बालों को और कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसे अपने फेस के और करीब किया था। जहान ईबो के फेस के इतने नज़दीक था कि ईबो की गुस्से से रेज होती सांसें जहान अपने फेस पर भी फील कर पा रहा था। उसने जहान की गैर यकीनी में डूबी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो, सच यही है कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को जान से मारा है, जिसका बदला तुम चुका रहे हो, और बहुत जल्द तुम्हारा बाप भी चुकाएगा। ऐसी मौत दूंगा तुम दोनों को कि मौत भी कांप जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जिस्मों की ये मामूली से जख्म मेरे छलनी वजूद और नुकसान का कफारा अदा नहीं कर सकते। ईबो की आंखों में नफरत और गुस्से की ये चिंगारी देखकर जहान एकदम से शिवर हुआ था। उसने ईबो की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर भींचते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरे डैड को कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मारना है ना, तुम मुझे मार दो, मेरे डैड को छोड़ दो। ये कहते हुए जहान की आवाज़ के साथ साथ उसका पूरा वजूद कांप रहा था। आंखों के आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो उसकी आंखों के किनारों से बस बहे जा रहे थे। ईबो ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लाया तो यहाँ मारने के लिए ही था, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें इसी तरह तड़पना होगा, इसी तरह घुट घुट कर जीना होगा, जैसे मैं जिया हूं तुम्हारे बाप की बदौलत। ऐसे ही तड़पो तुम, जब तक मैं तुम्हारे बाप की हलक से उसकी सांसें नहीं खींच लेता, उसे उसके किए की सजा नहीं दे देता। ये कहते हुए ईबो ने जहान को उसके बालों से पकड़े हुए ही खुद से दूर फेंका था और जहान जमीन पर जा गिरा और वो वहां से खड़ा होता अपनी तेज कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक तेज थड के साथ दरवाजे को बंद करता वो बाहर निकल गया। और जहान वैसे ही ज़मीन पर पड़ा लगातार रोए जा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते हुए ही वो एकदम से उठकर बैठ गया और अपने हाथों की जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगा। वो कोशिश करने लगा उन जंजीरों से खुद को आज़ाद करने की। वो रोए जा रहा था और साथ साथ लगातार चैंट किए जा रहा था, नहीं, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, वो झूठ बोल रहा है, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, डैड प्लीज़ मुझे आपके पास आना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, डैड प्लीज़ डैड। ये कहते हुए वो लगातार अपनी जंजीरों से अपने हाथ को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, जब ही अचानक उसके हाथ एकदम से रुके थे, जैसे उसके इनर सोल ने उसको आवाज़ लगाई थी कि तुम क्या कर रहे हो जहान, ऐसे तो तुम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे सच आखिर है क्या। उस लान की बातों में सच्चाई थी, तुम्हें यहाँ रुकना होगा।
اور اس لان وان سے پوری سچائی معلوم کرنی، ورنہ تم اپنے بچا نہیں پاؤ گے۔ یہ سوچتے کے ساتھ ہی ذہان نے بیزاری سے اپنے بے جان وجود کو پیچھے کی دیوار پر چھوڑا تھا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے آنسو ابھی بھی رکے نہیں تھے، بلکہ ان میں اور روانی آئی تھی اور اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ انہی سسکیوں کے درمیان ذہان نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہاں سے بھاگ نہیں سکتا، سچ پتہ کرنا ہوگا مجھے، یہاں سے بھاگ نہیں سکتا بنا سچ پتہ کرے۔ آفٹر 1 week ان وانگ پیلیس، جہاں اس تاریک کمرے میں چاند کی ہلکی سی روشنی اس کھڑکی کے گلاس سے چھنتے ہوئے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، وہیں ذہان اپنے حواسوں سے بیگانہ وجود کو اس کمرے کی دیوار سے ٹیکے ہوئے تھا، جو دھیرے دھیرے کر کے اب اپنے ہوش میں آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی آنکھیں کھولی، مگر اس کے ویژن پوری طرح سے بلری تھے، اسے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اپنی پلکوں کو جھپکاتے ہوئے اس نے اپنے ویژن کو کلیئر کیا تھا۔ ویژن کے کلیئر ہوتے ہی ذہان کو اپنے سامنے بیٹھا ایک بلڈ باڈی فگر نظر آیا، جو ذہان سے کچھ فاصلے پر اپنی بیک کیے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ذہان اس چاند کی روشنی میں بیٹھے اس کثرتی وجود کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی جب اس کی نظریں سامنے زمین پر ٹپکتے ہوئے خون کی بوندوں پر پڑی۔ وہ ایک دم سے گھبرایا اور اسی گھبراہٹ میں اس کے ہاتھوں میں بندھی زنجیریں موو ہوئی، جن سے اس کمرے کی خاموشی میں ہلکی سی آواز ہوئی تھی، اور اس شخص کے کانوں میں اس آواز کے پڑتے ہی وہ پیچھے مڑا، مگر اس سے پہلے کہ ذہان ایبو کی نظروں کی گرفت میں آ پاتا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ بالکل ایسا ہو گیا مانو وہ ہوش میں ہی نہ ہو، مگر ایبو کو کچھ خدشہ ہوا تھا۔ وہ ذہان کو اپنی کولڈ آئی سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بالکل ٹھنڈے تھے۔ اسی خدشے کے زیر اثر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ذہان کی طرف بڑھا۔ اس کی وائٹ شرٹ کے بٹن پوری طرح سے اوپن تھے، جن میں خون لگا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ذہان کے پاس آ رہا تھا، اور اس کی مٹھیوں میں بھینچے اس چاقو سے خون کی بوندیں اس فرش پر ٹپک رہی تھی۔ ایبو قدم قدم چلتا ہوا ذہان کے پاس آیا اور اس کے لیول تک بیٹھتے ہوئے اس کے پورے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، جو بالکل بے جان ہو کر اپنی آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ایبو نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چاقو سے اس کے چن کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنی ٹھنڈی آنکھوں سے اس کے پورے چہرے کو بغور سرچ کیا، لیکن ذہان کی پلکیں بھی موو نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد ایبو وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس واش روم کے ڈور کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ذہان نے اپنی آنکھیں ہلکے ہلکے اوپن کی تھی۔ اس نے فرش کی جانب دیکھا جہاں سے ابھی ابھی ایبو گیا تھا، اور اس فرش پر خون کی بوندیں دیکھ کر ذہان کو ایک دم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندوں نے جگہ لی تھی۔ آفٹر سم ٹائم ان مارننگ، ایبو اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ہنٹر پیلس میں موجود تھا۔ اس سیاہ ہنٹر پیلس کی خاموشی میں ایک شخص کی دردناک چیخیں گونج رہی تھی، جس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اسے پیروں سے الٹا لٹکایا گیا تھا، جو ہر 2 سیکنڈ کے بعد الیکٹرک واٹر میں ڈپ ہو رہا تھا، اور ہر ڈپ کے ساتھ اس شخص کو موت کا سا احساس ہو رہا تھا، جسے ایبو دور سے بیٹھے پرسکون ہو کر دیکھ رہا تھا، اور مینگ یاؤ اینڈ ہاؤ شوان چابک سے اس کی کھال ادھیڑ رہے تھے، جس کی ہر ضرب کے ساتھ اس شخص کی کھال اس کوڑے سے کھینچ کر آ رہی تھی۔ یہ 3rd ڈگری ٹارچر اتنا بد سے بدتر تھا کہ وہ شخص اپنی موت کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، مگر سامنے بیٹھا شخص بالکل بے رحم تھا، جو اسے موت کی بھی سزا دے کر آزاد نہیں کر رہا تھا۔ ٹائم اسکپ ان نیکسٹ ڈے، ایبو اس وقت وانگ انٹرپرائزز کی میٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی۔ ایبو کی نظریں سامنے چل رہے پروجیکٹر پر ٹکی ہوئی تھی، جس کی ڈیٹیلز کو ایک امپلائی پروفیشنلی طریقے سے ڈسکرائب کر رہا تھا، کہ تبھی اچانک ایک دم سے اس میٹنگ روم کا ڈور اوپن ہوتا ہے، اور ایک اونچی شخصیت کا مالک اپنے گارڈز کے ساتھ میٹنگ روم میں انٹر ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے ریسیپشنسٹ روم میں انٹر ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ہافتی ہوئی آواز میں کہا، I'm sorry سر، میں نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، ان کو کہا کہ آپ میٹنگ روم میں بزی ہیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی، اور اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بولتی، ایبو نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ ایبو کے آرڈر پر وہ ریسیپشنسٹ اوکے سر کہتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ ایبو نے اپنے سبھی امپلائی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی کولڈ وائس میں کہا، میٹنگ از اوور، اور باقی کے پوائنٹس ہم اگلی میٹنگ میں ڈسکس کریں گے۔
ایبو کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ سبھی امپلائیز ایک ایک کر کے اس میٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ ان سبھی کے وہاں سے جاتے ہی فینگ میان نے کہا، آپ نے کہا تھا نا مسٹر وانگ، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ دیکھیے آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، ہم پھر سے ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ایبو نے فینگ میان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ویلکم مسٹر شاؤ، آپ وانگ انٹرپرائزز میں؟ اب آپ یہاں آئے ہیں تو کوئی خاص ہی وجہ رہی ہوگی۔ فینگ میان نے میٹنگ ٹیبل کی مڈل چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، صحیح کہا آپ نے مسٹر وانگ، میں یہاں کسی خاص وجہ سے ہی آیا ہوں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک ڈیل ہے۔ ایبو نے فینگ میان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی کولڈ وائس میں کہا، ڈیل؟ مسٹر شاؤ کو وانگ انٹرپرائزز کے ساتھ ڈیل کرنے میں کب سے دلچسپی ہونے لگی؟ فینگ میان نے ایبو کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ڈیل وانگ انٹرپرائزز کے لیے نہیں، مافیا وانگ ایبو کے لیے ہے۔ آپ کے لیے ایک بہت ہی عمدہ مشروب لے کر آیا ہوں، اور یقین مانیں یہ مشروب آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی۔ یہ میں نے یورپ سے خاص آپ کے لیے منگوایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فینگ میان نے ایک وائٹ پیکٹ کو ایبو کے سامنے اس ٹیبل پر رکھا تھا۔ ایبو نے فینگ میان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس عمدہ تحفے کی کوئی خاص وجہ؟ فینگ میان نے کہا، صرف یہی نہیں، اور بھی کئی کارٹنز ہیں جو میں آپ کے لیے ایز اے گفٹ لایا ہوں۔ ایبو نے پھر سے اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہا، پھر بھی اس گفٹ کی کوئی تو قیمت ہوگی۔ فینگ میان نے اس پیکٹ کو ایبو کی طرف سرکاتے ہوئے کہا، کچھ خاص نہیں، بس میری ایک بہت ہی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، وہ مجھے چاہیے۔ یہ سن کر ایبو کے چہرے پر ایک اسمرک ابھرا تھا۔ اس نے اپنی چیئر پر لین ہوتے ہوئے قدرے پرسکون لہجے میں کہا، اب آپ میرے لیے اتنا قیمتی تحفہ لے کر آئے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کو کوئی خاص تحفہ دوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پاس کھڑا ہاؤشوان سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک بڑا سا باکس فینگ میان کے سامنے لا کر رکھا تھا۔ فینگ میان نے اس باکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ ایبو نے اپنے اسی کولڈ فیس کے ساتھ پرسکون لہجے میں کہا، یہ ایک تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے جو آپ کو بہت پسند آئے گا، اوپن اٹ۔ یہ کہتے ہوئے وانگ ایبو شاؤ فینگ میان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایبو کی بات سن کر فینگ میان نے اس باکس کو کھولا، اور جیسے ہی فینگ میان نے اس باکس کو کھولا، اس کے اندر اپنے آدمی کا کٹا ہوا سر دیکھ کر وہ ایک دم سے غصے سے چیختا اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، لان وانگ ایبو! فینگ میان کو خود پر غصے سے چیختا دیکھ کر ایبو نے اسمرک کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے مسٹر شاؤ کو میرا تحفہ پسند نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ جو تحفہ بھیجوں گا وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ فینگ میان نے قدرے غصے سے چیختے ہوئے کہا، خبردار! جو تم نے اس کو ہاتھ بھی لگایا لان وانگ ایبو، میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ ایبو نے اسمرک کرتے ہوئے قدرے پرسکون لہجے میں اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ارے مسٹر شاؤ، اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ فکر نہ کریں، آپ کی وہ قیمتی چیز میرے پاس محفوظ ہے۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا میں کتنا بڑا سنکی ہوں، اس لیے آپ کو اپنے ایکشنز پر دھیان دینا چاہیے ذرا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ایکشنز مجھے ری ایکشن کرنے پر مجبور کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے ایبو اس ٹیبل پر لین ہوا تھا۔ اس کی وہ کولڈ آئیز ڈارک ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کر فینگ میان نے اپنے جبڑے کو غصے سے بھینچتے ہوئے کہا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو لان وانگ ایبو، اس کے لیے تم پچھتاؤ گے، یاد رکھنا میری اس بات کو۔ یہ کہتے ہوئے فینگ میان اس چیئر کو کک کرتا اس میٹنگ روم سے باہر نکل گیا تھا، اور وانگ ایبو نے بس غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا، مگر اس کے اندر غصے کے جو لاوے پھوٹ رہے تھے ہر کوئی اس سے بے خبر تھا۔ مگر جس پر اس کے غصے کا وہ لاوا پھوٹا تھا وہ اس سے زیادہ وقت تک بے خبر نہیں تھا۔ ایبو کے لیدر بیلٹ کی آواز اس پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جو کہ ذہان کے زخمی وجود کو اور زیادہ چھلنی کر رہے تھے۔ اس کی چیخوں، پکاروں اور کراہوں سے پورا وانگ پیلس لرز رہا تھا۔ ایبو آج بہت بے رحم تھا۔ اس کے اندر کا آج وہ جانور سامنے تھا جس سے آج تک ذہان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ پچھلے کافی سمے سے ذہان پر اپنی لیدر بیلٹ سے ضرب پر ضرب لگائے جا رہا تھا۔
उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ से खून नहीं रिस रहा था। जहान का वो जख्मी वजूद अब अपने पैरों पर भी खड़ा होने से आरी हो चुका था। उसका वो निढाल हाफ निकट शरीर उन जंजीरों में जकड़ा हुआ हवा में झूल रहा था, मगर वो संगदिल बेरहम जानवर अब भी रुका नहीं था। वो खुद भी पसीने से तरबतर हो चुका था। -डिग्री पर चलता हुआ वो एसी भी उनके लिए कोई कारीगर साबित नहीं हो रहा था। जहान अपनी जख्मी वजूद से खून में भीगा हुआ था, तो वहीं ईबो भी पसीने से पूरी तरह से तरबतर था। आखिर को उस जालिम के हाथ रुके थे जब उस लेदर बेल्ट के 2 टुकड़े हुए थे। ईबो ने उस लेदर बेल्ट के टुकड़े को वहीं सोफे पर फेंका और कदरे गुस्से और बल से जहान पर चीखा, आई विल किल यू बास्टर्ड। यह कहते हुए उसने जहान के रुखसार पर एक जोरदार उल्टा तमाचा रसीद किया था। वो उसे पुश करता, अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाता उस कमरे से बाहर निकल आया और जहान का वो बेजान शरीर उन जंजीर में टंगा झूलने लगा, जो अपने होशो हवास से बेगाना हो चुका था। और वो पूरी रात कब और कैसे गुजरी, उन दोनों को ही उसकी खबर न थी। सूरज ने उस रात की तारीकी को मिटाते हुए आसमान में अपनी आंखें खोल ली थी, जिसकी चमकती हुई रोशनी ने ईबो की आंखों पर हिट किया था। ईबो ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी आंखें खोली। आंखों के खुलते ही ईबो को अपने सर में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया और खुद में ही बड़बड़ाता हुआ, खुद को संभालते हुए उस जमीन से उठ खड़ा हुआ। व्हाट द हेल, ये कैसा दर्द है। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें ओपन की और सामने के सारे मंजर को देखकर कल रात के सभी फ्लैशेस उसकी नज़रों के सामने से होकर गुजरे थे। वो इस वक्त लान मैंशन में खड़ा था। उसके इर्द गिर्द उस डाइनिंग एरिया की सारी चीज़ें ज़मीन पर टूटी बिखरी पड़ी थी, जिसको कल रात ईबो ने नशे में अपने हाथों से तोड़ा था। वो कल रात को ही वांग पैलेस से लैंड मैंशन लौट आया था और यहाँ आकर तबाही मचाई थी उसने। उसकी वाइन्स की बॉटल्स भी वहाँ टूटी बिखरी पड़ी थी। ये सब देखकर ईबो ने एक गहरी सांस लेकर हवा के सुपुर्द की। इन सभी के बीच उसे उस शख्स का ख्याल अभी तक नहीं आया था, जिसको कल रात वो अपनी सांसों के लिए तड़पता छोड़ कर आया था। उसने वहीं सोफे से अपनी कोट को उठाया और सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। 1 घंटे बाद वो फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आया, जो अब पहले की बनिस्बत कदरे हद तक प्रेजेंटेबल लग रहा था। वो अपने वाइट पैंट की पॉकेट में अपने हाथ को डाले तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। कार में बैठते के साथ ही उसने कार का रुख वांग पैलेस की तरफ किया और चाइना की मशरूफ तरीन सड़कों पर अपनी कार को दौड़ाने लगा। ये लान मैंशन उसकी मॉम का था। यहाँ उसकी मॉम रहती थी। वो अपने ऑफिस और बिजनेस से रिलेटेड ही यहाँ काम किया करता था। यहाँ आकर उसे उसकी माँ का एहसास होता था, उसे सुकून महसूस होता था। इसलिए जब भी वो उदास होता था या उसे उसकी मॉम की याद आती थी, तो वो इस पैलेस में आ जाया करता था। आफ्टर सम टाइम इन वांग पैलेस, जहाँ उस वांग पैलेस में एंटर होते के साथ ही ईबो को उस शख्स का ख्याल आया और उसका ख्याल आते के साथ ही उसकी आंखें बड़ी हुई थी। वो तेज़ी से अपने रूम की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की रफ्तार कदरे तेज़ी से उन सीढ़ियों के फासले को तय कर रहे थे। वो अपने उसी रफ्तार को मेंटेन रखे तेज़ी से चलता हुआ अपने रूम तक पहुंचा। उसने डोर ओपन किया तो हमेशा की तरह उस कमरे की ठंडक ने उसके वजूद को छूकर उसका इस्तकबाल किया था। उसने डोर ओपन करते उस तारीक कमरे की तारीकी में अपना कदम बढ़ाया था। आज ये पहली दफ़ा था जब ईबो दिन के उजाले में इस कमरे में दाखिल हुआ था। वो उस अंधेरे कमरे में चलता हुआ तेज़ी से उस खिड़की के पास पहुंचा, जिसके ब्लैक कर्टन्स को उसने तेज़ी से हटाया। उन कर्टन्स के हटते ही सूरज की किरणों ने उस अंधेरे कमरे में अपनी रोशनी बिखेरी थी, जो अंधेरे में छुपे जहान के ज़ख्मी वजूद को बेनकाब कर गई थी। और जैसे ही ईबो उन कर्टन्स को हटाकर पलटा था, सामने का नज़ारा उसके दिल के धड़कन को रोक गया था, मानो उसके दिल को किसी ने अपनी मुट्ठियों में कस कर भींच लिया हो। इन 1.5 सालों में आज पहली बार उसे जहान को खो देने का एहसास शिद्दत से हुआ था। वो अपने कांपते वजूद के साथ तेज़ी से जहान की तरफ बढ़ा और हवा में झूलते उसके ज़ख्मी वजूद को अपनी मजबूत बाजुओं में होल्ड करते हुए उसे उन जंजीरों से आज़ाद किया। जंजीरों से आज़ाद होते ही उसका वो निढाल शरीर ईबो की बाहों में ढह गया, जिसे ईबो ने मजबूती से अपनी बाहों में समेटा था और उसे अपनी बाहों में उठाए उसे बेड तक लाया और उसे उस बेड पर लेटा दिया। उसका पूरा शरीर जख्मों से छलनी और बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा था, जिसे महसूस करते के साथ ही ईबो ने एसी के रिमोट को ढूंढना शुरू किया, जो उसे वहीं सोफे पर नजर आ गया था। उसने रिमोट को उठाते के साथ ही एसी को तुरंत ऑफ किया और हीटर ऑन कर दिया। जहान को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से टक किया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा,
लेकिन जहान बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। ईबो ने अपने कांपते हुए हाथों को जहान की सांसों को चेक करने के लिए आगे बढ़ाया तो उसकी सांसों को महसूस न करके उसे खुद का सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो शिद्दत से जहान के दिल के मुकाम पर लीन हुआ था, उसके दिल की धड़कनों को सुनने के लिए, लेकिन वो भी जैसे ईबो को फील नहीं हो रहे थे। उसके माथे पर पसीने और आंखों में आंसुओं ने जगह ली थी। वो जैसे गैर यकीनी से जहान के फेस को अपनी आंसुओं से डबडबाई आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जहान के खून से उसका वो वाइट लिबास पूरी तरह से दागदार हो गया था। वो बुरी तरह से शिवर कर रहा था। फिर अचानक कुछ याद आने पर उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन बाहर निकाला और अपने कांपते हुए हाथों से हाउशवान को कॉल करने लगा, जिसे 2 ही रिंग में उसने उठा लिया था। फ़ोन के उठते के साथ ही ईबो ने कहा, हाउशवान, डॉक्टर को लेकर आओ जल्दी। ये कहते वक्त आज पहली दफा उस लान वांग ईबो की आवाज़ लड़खड़ाई थी। ये कहते हुए उसने कॉल कट की और फ़ोन को बेड की दूसरी जानिब फेंकता शिद्दत से जहान की तरफ लीन हुआ था और जहान का वो पेल पड़ा चेहरा अपने हाथों के प्याले में कप करते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वो जहान के फेस की तरफ देख रहा था। आफ्टर सम टाइम, जहाँ उन तारों से भरे आसमान में चांद अपनी चांदनी को बिखेरे मुस्कुरा रहा था और अपनी चांदनी से उस अंधेरे कमरे को रोशन किए हुए था, जहाँ 2 सांसें कदमें धीमी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन दिल की धड़कनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। जहाँ उस बेड पर लेटे शख्स का दिल अपनी नॉर्मल रफ्तार में धड़क रहा था, तो वहीं उसके पास में बैठे शख्स का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसकी निगाहें जहान पर शिद्दत से गड़ी हुई थी। ईबो के अंदर का हाल जो भी हो, लेकिन उसके फेस का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड था। वो अपने थंब से जहान के आईब्राउज़ को हल्का हल्का सहला रहा था और वो बैंडेज से लिपटा वजूद पुरसुकून होकर अपने होशो हवास से बेगाना लेटा हुआ था और लगभग 2 दिन तक वो ऐसे ही बेहोश रहा। 2 दिन बाद जहान ने अपनी आंखें खोली थी। उसने हल्के हल्के अपनी आंखों को ओपन किया तो एक तेज़ रोशनी उसकी आंखों में चुभी थी और उसने अपनी आंखों को वापस से बंद कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपनी आंखें खोली, मगर विज़न उसके ब्लरी थे। इतने लंबे समय के बाद जहान को सूरज की किरण नसीब हुई थी, इसलिए वो इन किरणों के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। उसने अपने विज़न को क्लियर करने के लिए अपनी आंखें बंद करके वापस से खोली तो उसकी धुंधलाती हुई नज़रों के सामने एक शख्स खड़ा नज़र आया। उसने खुद को स्टेबल करते हुए उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे तेज़ दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली, जिसे सुनकर ईबो, जो कि खिड़की के बाहर देख रहा था, मुड़ता तेज़ी से जहान की तरफ बढ़ा और उसे सहारा देते हुए उसे बैठने में मदद की। और जब जहान की आंखें ईबो की कोल्ड आइज से टकराई तो उसे एकदम से खौफ महसूस हुआ। वो एकदम से पीछे होने लगा। वो इन आँखों की खौफनाकियत को कैसे भूल सकता था जो उसने उस रात देखी थी। उसे एकदम से उस रात का खौफनाकियत भरा मंजर याद आया था। जहान को इस तरह से डरकर खुद से दूर होता देखकर ईबो ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा, सो जस्ट रिलैक्स, हिलो मत, जख्म खुल जाएगा। ईबो की बात सुनकर जहान ने खुद की तरफ देखा तो उसका पूरा जिस्म उन बैंडेज से जकड़ा हुआ था और उसके साथ उसे इस बात का भी एहसास हुआ था कि वो कहाँ है। और ख़ुद को उस बेड पर देखकर जहान हैरान हुआ था। वो एक बार फिर से उस बेड से उठने की कोशिश करने लगा। जहान को फिर से उठने के लिए स्ट्रगल करता देख ईबो ने उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहा, आई सेड डोंट मूव। इस बार ईबो का लहजा और सख्त हुआ था, जिसकी वजह से जहान बस शांत हो गया था। वो ईबो को अपनी उन डरी हुई आंखों से देखने लगा। जहान को इस तरह से खुद से डरता हुआ देखकर ईबो ने अपनी धीमी मगर कोल्ड वॉइस में कहा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, तुम वीक हो, इसलिए ज़्यादा हिलो मत। ईबो की इस बिहेवियर को देखकर जहान एक पल के लिए हैरान हुआ था और इसी हैरानी में उसकी नज़र अपनी कलाई पर गई, जिसको ईबो ने होल्ड कर रखा था। हमेशा उसकी पकड़ मजबूत होती थी, लेकिन इस वक्त उसकी पकड़ इतनी सख्त नहीं थी। जहान को उसके हाथों की तरफ देखता देखकर ईबो ने तुरंत उसके हाथों को अपनी पकड़ से आज़ाद किया। जहान अपनी हैरान भरी आंखों से ईबो की तरफ देख ही रहा था कि ईबो ने साइड टेबल से एक बाउल को उठाकर जहान के सामने करते हुए कहा, इसे खा लो। जहान ने एक नज़र उस बाउल की तरफ देखा और फिर ईबो की तरफ देखते हुए अपनी उसी धीमी आवाज़ में कहा, मैं नहीं खाऊंगा। ईबो ने कहा, क्यों नहीं खाओगे?
जहान ने कहा, मैं ये नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। जहान की ये बात सुनकर ईबो बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया और लगभग 10 मिनट बाद वो एक बाउल के साथ वापस आया। उसने उस सूप से भरे बाउल को जहान की तरफ करते हुए कहा, इसे पियो, ये अच्छा लगेगा। तुम्हारा स्टमक अभी वीक है, ये अभी के लिए बेहतर है। जहान उसे अपनी हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। उसने उस गर्म सूप से भरे बाउल की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है? जहान को ईबो के इस बिहेवियर पर खदशा हुआ था। जहान के इस सवाल पर ईबो ने एक नज़र जहान की तरफ देखा और फिर उस बाउल से एक स्पून अपने मुंह में डालते हुए कहा, ये सेफ है, अब तुम इसे पी सकते हो। ये कहते हुए उसने वो बाउल जहान के हाथों में पकड़ा दिया था, जिसे बिना कुछ कहे जहान ने बस थाम लिया था। वो ईबो के इस बिहेवियर से हैरानी की इंतहा पर था और बिना कुछ कहे उसने उस बाउल को खाली करते बेड साइड टेबल पर रखा। उसके बाद ईबो ने उसे मेडिसिन खिलाई और आराम करने का बोलकर वो सीधा रूम से बाहर निकल गया। ईबो के इस रूम से जाने के बाद जहान ने एक भरपूर निगाह उस पूरे कमरे पर डाली, जहां हर तरफ आज रोशनी फैली हुई थी। जहान अपने जख्मों को टच करते हुए उन्हें देखने लगा, जिन पर मरहम लगे हुए थे। कैसा जालिम है, जख्म देकर मरहम लगाता है। उसने अपनी कलाइयों की तरफ देखा, जो जंजीरों से बिल्कुल आज़ाद थे मगर ज़ख्मी थे। मगर क्या वो सच में आज़ाद था? तो नहीं। जहान ने अपने ऊपर से उस कंफर्टर को हटाया तो उसके पैरों की वो बेड़ी नज़र आई, जो उसके एक पैर को जकड़े हुए थी, जिसे देखकर जहान ने वो कंफर्टर वापस अपने ऊपर डाल लिया और अपने सर को पीछे की तरफ लीन करते अपनी आंखें बंद कर ली और फिर रफ्ता रफ्ता सूरज की गर्माइश को मिटाते हुए तारों के बीच चमकते हुए चांद ने अपनी चांदनी से ठंडक की थी। जिस तरह जहान के उन जलते हुए जख्मों पर ईबो ने मरहम लगाकर उसे ठंडक पहुंचाई थी। उस दिन के बाद से वो खौफनाकियत भरी रात जहान की ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आई। ईबो उसका ख्याल रखता था, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाता, उसकी बैंडेज चेंज करता, गीले कपड़ों से उसकी बॉडी क्लीन करता, उसे खाना खिलाता, मेडिसिन देता। और ईबो की इस बिहेवियर से जहान के अंदर ईबो के लिए वो डर काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसे अब ईबो को देखकर खौफ नहीं आता था, वो उसे देखकर कांपता नहीं था, बल्कि वो एक चेहरा था जिसका वो इंतज़ार किया करता था। एक वक्त था जब वो इस चेहरे के ना नज़र आने के लिए दुआएं किया करता था, मगर अब वो उस चेहरे का घंटों इंतज़ार किया करता है। पूरे 1 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उसे ईबो का ये बिहेवियर समझ नहीं आया। हाँ, वो उसकी फ़िक्र करता है, लेकिन उसका जुल्म रुका भी नहीं है। वो बेड़ियाँ आज भी वहाँ मौजूद हैं, बस फ़र्क इतना सा हो गया है कि वो उसे एक ही जगह पर कैद करके नहीं रखती। अब वो उस कमरे के किसी भी कोने में आ जा सकता है। जिस तरह से वो इस वक्त बैठा हुआ है इस खिड़की के सामने। बाहर तेज़ बारिश हो रही है और जहान उस काले बादल की तरफ अपनी निगाहों को किए बैठा हुआ है, जो अपने पीछे उस चांद को छिपाए हुए है। जहान अपनी सोचों में ही था कि एकदम से डोर ओपन होने की आवाज़ से वो पीछे मुड़ा और उसे वहाँ वो चेहरा नज़र आया जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा था। ईबो को वहाँ देखकर जहान ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, बाहर बारिश हो रही है, तुम भीग गए? ईबो ने अपने कोट को उतारकर वहीं सोफे पर रखते हुए अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं, ज़्यादा नहीं। ये कहते हुए वो अपने उसी कोल्ड फेस के साथ चलता हुआ जहान के पास आ खड़ा हुआ। उसने जहान की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम वहाँ फर्श पर क्यों बैठे हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, ऊपर आकर बैठो। यह कहते हुए उसने सोफे की तरफ इशारा किया था, जिसे देखकर जहान के फेस पर एक टूटी हुई सी मुस्कुराहट उभरी थी। उसके दिल ने एकदम से कहा, अरे जालिम, जब मुझे -डिग्री में हाफ नेकेड छोड़कर जाता था तब तुझे ख्याल नहीं आता था कि मुझे ठंड लग जाएगी? जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं बस जा ही रहा था। यह कहते हुए वो उठकर बेड की तरफ जाने लगा। ईबो ने जहान की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुमने खाना खाया? जहान ने एक तिरछी नज़र से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैंने खाना खा लिया। यह कहते हुए वो बेड पर आकर बैठ गया। ईबो ने सामने टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और चलता हुआ जहान के पास आकर बैठ गया। उसे वहाँ बैठता देखकर जहान ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। जहान की सवालिया नज़रों को खुद पर महसूस करके ईबो ने कहा, बैंडेज चेंज करनी है। यह कहते हुए वो जहान के ज़ख्मों से
उस बैंडेज को निकालने लगा। ईबो की इस करीबी से जहान के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हुई थी। वो ईबो की तरफ बिना अपनी पलकें झपकाए देखे जा रहा था। वो उसके फेस के एक एक नक्कूश को बारीकी से सर्च कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था जिसको वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस वहशी की तरफ खुद को खिंचता हुआ महसूस कर रहा है। वो इसमें पूरी तरह से खोया हुआ था कि ईबो ने कहा, अपनी आर्म्स ऊपर करो। लेकिन जहान ने कोई जवाब नहीं दिया। ईबो ने जहान की तरफ देखा जो उसमें पूरी तरह से खोया हुआ था। उसने जहान को पुकारते हुए कहा, जहान। उसकी आवाज़ पर जहान एकदम से अपनी होश में आया। जहान ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, हाँ। ईबो ने कहा, अपनी आर्म्स ऊपर करो। जहान ने नासमझी से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आर्म्स। जहान को इस तरह से अजीब बिहेव करता देखकर ईबो ने उसके हाथों को उठाकर अपने शोल्डर पर रख लिया और ईबो का ये रिएक्शन जहान के अंदर शिवर दौड़ा गया। ईबो ने दवा लगाकर बैंडेज कंप्लीट करते हुए कहा, यह काफ़ी हील हो गया है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए उसने जहान को मेडिसिन दी और उसे बेड पर लेटाकर खुद भी सोफे पर आकर लेट गया। जहान उस सोफे पर लेटे वजूद को देखता रहा और उसके एक्सप्रेशन लेस फेस को पढ़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। अगली सुबह जहान शावर लेकर उस वॉशरूम से बाहर आया। उसके वॉशरूम से बाहर आते ही ईबो की नज़रें उस पर गई और वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया। उसके दिल की धड़कनों ने एकदम से शोर मचाया। उसने गल्प करते हुए अपनी मेस्मराइजिंग नज़रों से एक भरपूर निगाह जहान के उस दूधिया वजूद पर डाली जिस पर बहुत से जख्मों के निशान थे, मगर उसके बावजूद भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो बिना पलके झपकाए लगातार जहान की तरफ देख रहा था। ईबो की नज़रों को खुद पर महसूस करके जहान ने अपने वेस्ट पर बंधी टॉवल को कसकर ग्रैब किया। उसके गीले बालों से वाटर ड्रॉप होकर उसके दूधिया जिस्म से स्लाइड होते हुए फर्श पर गिर रही थी जो ईबो को दीवाना कर रही थी। ईबो ने अपने हाथ में पकड़े कोट को वहीं सोफे पर रखा और उसकी साइड से टॉवल को उठाता जहान की तरफ बढ़ा। ईबो को खुद की तरफ बढ़ता देखकर जहान एकदम से शिवर हुआ था। ईबो ने जहान को उसकी बाजुओं से पकड़कर उसे बेड पर बैठाया और उसके गीले बालों को नरमी से उस टॉवल से सुखाने लगा। थोड़ी देर बाद जहान ने हिम्मत करते हुए ईबो को पुकारा, ईबो। ईबो ने कहा, जहान ने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे डैड के पास जाना है। और ये सुनकर ईबो के हाथ एकदम से रुके थे। उसकी उस कोल्ड आइज में गुस्से की चमक उभरी थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो खुद को कंट्रोल करता हुआ वापस से अपने हाथों को मूव करने लगा, मगर इस बार वो थोड़ा रफ था जिसको जहान ने भी महसूस किया था। मगर जहान ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, मुझे डैड के पास जाना है ईबो। मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनसे पूछना है कि तुमने उस रात जो कुछ भी कहा था उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं अपने डैड को जानता हूँ, वो तुम्हारी मॉम को नहीं मार सकते। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। वो जो कब से सब कुछ सुन रहा था और ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जहान की इस बात ने उसके गुस्से के आखिरी पॉइंट को ट्रिगर कर दिया था। उसने गुस्से से उसके गले को पकड़ के उसे बेड पर पुश किया और उसकी हाफ नेकेड बॉडी पर लीन होकर गुस्से से अपने जबड़े को भींचे हुए उसके गले को और कस कर दबाते हुए कहा, खबरदार, खबरदार जो अपने बाप की वकालत मेरे सामने की तो। क्या जानते हो तुम अपने बाप के बारे में? तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुप कर जाओ। ईबो की पकड़ की वजह से जहान का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है वांग ईबो। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नहीं मारा तुम्हारी मॉम को। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ इल्ज़ाम है मेरे डैड पर। इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम नहीं है ये। तेरे ही बाप ने मेरी माँ को मारा है। और क्या कहा तुमने? सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें इस बात का? सबूत? गुस्से से चीखते हुए ईबो ने अपनी उस ब्लैक शर्ट को एकदम से फाड़कर फेंक दिया। अब वो पूरी तरह से शर्टलेस जहान के ऊपर था। उस शर्ट के फटते ही ईबो की वेस्ट का वो बड़ा सा जख्म जहान की नज़रों के सामने था, जिसे देखकर जहान की आंखें हैरत से बड़ी हुई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस जख्म को छूने की कोशिश करते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा,
ये जख्म। मगर इससे पहले कि जहान उसके जख्म को टच कर पाता, ईबो ने उसके हाथ को ग्रैब कर लिया और गुस्से से उस पर चीखते हुए कहा, जख्म नहीं है ये, नासूर है। ऐसा नासूर जिसको मैं 10 सालों से पाल रहा हूं। वो नासूर जिसकी वजह तुम्हारा बाप है। अगर तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को नहीं मारा होता तो ये नासूर मेरे जिस्म पर नहीं होता। ये सबूत है इस बात का कि तुम्हारा बाप ही मेरी माँ का कातिल है। ये कहते हुए गुस्से से उसने जहान के जबड़े को कसकर जकड़ा था। जहां ईबो गुस्से से फट रहा था, वहीं जहान लगातार रोए जा रहा था। उसे ईबो की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। लानवांग ईबो, नहीं मारा मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम को। जहान की ये कहने की देर थी कि एक जोरदार तमाचा ईबो ने उसके फेस पर हिट किया और अपनी उस लेदर बेल्ट को गुस्से से निकालता तेजी से खड़ा हुआ और एक बार फिर से उस हैवान को अपनी असली शक्ल में आता देखकर जहान खौफ से लरजा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए डर कर कहा, नहीं लानवांग ईबो, नहीं। ईबो ने गुस्से से चीखते हुए उसे मारने के लिए उस लेदर बेल्ट को मजबूती से अपने हाथों में जकड़े ऊपर उठाया, जिससे सहम कर जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मगर जहान के जिस्म पर उन जख्मों के निशान देखकर ईबो के हाथ हवा में ही ठहर गए। उसकी नज़रों के सामने से उसके गुजरे हुए वक्त के फ्लैशेस होकर गुजरे। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए गुस्से से अपनी आंखें मींच ली और फिर बिना कुछ बोले उस लेदर बेल्ट को वहीं बेड पर गुस्से से फेंकता अपनी तेज कदमों के साथ उस रूम से बाहर निकल आया, क्योंकि वो जानता था अगर वो यहाँ एक पल और रुका तो वो जहान का नक्शा बिगाड़ देता। और फिर डोर के बंद होने की तेज आवाज़ से जहान ने डर कर अपनी आंखें खोली थी और ईबो को वहाँ न देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। जहान को उसी तरह रोते हुए घंटों बीत गए थे, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो अब और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करना ही होगा, और ये ख्याल आते के साथ ही वो उस बेड से उठा और उस पूरे कमरे में उन बेड़ियों को खोलने के लिए वो कोई चीज़ तलाश करने लगा। लेकिन उस पूरे कमरे में उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे वो अपनी बेड़ियों को खोल पाता। वो ढूंढ ही रहा था कि उसकी नज़र एकदम से बेड पर पड़े उस लेदर बेल्ट पर गई, जिसको ईबो गुस्से से फेंक कर गया था। जहान तेज़ी से उस बेल्ट की तरफ बढ़ा। उसने उस बेल्ट को उठाते हुए बेल्ट में लगी उस पिन को देखा और बिना एक पल और ज़ाये किए वो उस पिन से उन बेड़ियों में लगे लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। थोड़े टाइम तक कोशिश करने के बाद एकदम से एक क्लिक की आवाज़ जहान के कानों में पड़ी और उस आवाज़ के सुनते ही जहान को खुशी महसूस हुई। उसने जल्दी जल्दी अपने पैरों को उन बेड़ियों से आज़ाद किया और तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वहाँ से उसने ईबो की वाइट शर्ट और ट्राउज़र निकाला और उसे पहनकर तेज़ी से डोर की तरफ बढ़ा और उसे ओपन करने की कोशिश की तो वो खुल गया, क्योंकि ईबो इतने गुस्से में उस रूम से बाहर निकला था कि वो डोर लॉक करना भूल गया था। जहान आहिस्ता से उस रूम से बाहर निकला और अपनी नज़रों को उस बड़े से वांग पैलेस की चारों तरफ दौड़ाते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो उन गार्ड्स की नज़रों से बचता बचाता उस वांग पैलेस से बाहर आ गया था। इस वक्त ज़्यादा गार्ड्स नहीं थे वहाँ, क्योंकि वो सभी ईबो के ऑर्डर पर उस हंटर पैलेस में खुद को किसी बड़ी वॉर के लिए तैयार कर रहे थे। इसलिए जहान को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई उस पैलेस से बाहर निकलने में। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसके कदम एकदम से छिटके जब उसके कानों में किसी की सिसकियों की आवाज़ पड़ी। उसने उस आवाज़ की सिमत अपना रुख किया, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। लेकिन वो आवाज़ अभी भी उस गार्डन से आ रही थी। जहान ने और गौर से देखा तो उसे थोड़ी दूर पर उस झील के पास वो शख्स नजर आया जो अपने घुटनों के बल बैठा सिसकियों के दरमियान रो रहा था। उसका जिस्म रोने की शिद्दत से लरज़ रहा था, जिसे देखकर जहान को एक पल के लिए हैरत का झटका लगा था कि क्या किसी और को अपने तशद्दुद से तड़पाने वाला, उसको रोने पर मजबूर करने वाला ये बेदर्द वहशी भी रो सकता है। उसे वहाँ देखकर जहान वहाँ से जाने के लिए पलटा। आखिर सालों बाद उसे ये आज़ादी नसीब हुई है। उसे ये मौका नसीब हुआ है जब वो खुद को यहाँ से आज़ाद कर सकता है। वो अपने इस मौके को गवा नहीं सकता। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ा, मगर वो अपना अगला कदम उठा ही नहीं पाया जब एक बार फिर उसकी सिसकियों की आवाज़ जहान के कानों से टकराई। जहान को ऐसा फील हुआ मानो उसकी सिसकियों ने उसके पैरों को बेड़ियों की तरह जकड़ लिया हो। जहान की नज़रों के सामने 1 महीने के गुजारे हुए सभी फ्लैशेस होकर गुजरने लगे।
کہ کس طرح ایبو نے اس کا خیال رکھا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا، اس کی پرواہ کی، اور یہ خیال آتے کے ساتھ ہی ذہان کے وہ قدم ایبو کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ اس گارڈن کی کیاریوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایبو کے پاس آیا اور اس کے لرزتے ہوئے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایبو نے ذہان کی پریزنس کو وہاں بہت پہلے ہی فیل کر لیا تھا۔ ذہان کے ہاتھوں کو اپنے کندھے پر محسوس کر کے اس کے رونے میں روانی آئی تھی۔ اسے اس طرح سے ٹوٹ کر بکھرتا دیکھ کر ذہان اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، اور پھر نہ جانے کب تک وہ روتا رہا اور وہ اسے بیٹھ کر یوں ہی دیکھتا رہا۔ دھیرے دھیرے کر کے وہ وقت بیتتا چلا گیا اور سورج اپنے چھپنے کی تیاری کرنے لگا، جس کی وجہ سے آسمان پر ساتوں رنگ بہت ہی خوبصورتی سے ابھر کر آ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ جنگلوں کے بیچوں بیچ اس جھیل کے کنارے خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایبو اب خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو تھم گئے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا اس جھیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ذہان بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ بھی ایبو کے خود سے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی ٹائم بعد ایبو نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے سلو وائس میں کہا، تم گئے کیوں نہیں؟ لیکن ذہان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایبو نے کہا، تمہارے پاس وقت بھی تھا اور موقع بھی، پھر بھاگے کیوں نہیں؟ ذہان نے کہا، مجھے نہیں پتا، بس تمہیں اس حال میں دیکھ کر جانے کا دل نہیں کیا۔ یہ سن کر ایبو کے فیس پر ایک ٹوٹی ہوئی سی ہلکی اسمائل ابھر آئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایبو کے اس سوال پر ذہان نے کہا، تمہیں یہ زخم کیسے لگا؟ ذہان کا یہ سوال سن کر وہ سمجھ گیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ایبو نے کہا، یہ زخم مجھے میرے ڈیڈ نے دیا ہے۔ اور ایبو کا یہ جواب سن کر ذہان نے اپنی نظروں کو اس جھیل سے ہٹا کر ایبو کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ اس کی وجہ میرے ڈیڈ ہے۔ سامنے جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے ہی ایبو نے اپنے ایکسپریشن لیس فیس کے ساتھ کہا، ہاں، یہ زخم مجھے میرے ڈیڈ نے دیا ہے، لیکن اس کی وجہ تمہارے ڈیڈ ہے۔ ذہان نے کہا، وہ کیسے؟ ذہان کا یہ سوال سن کر ایبو نے ایک گہری نگاہ ذہان کے فیس پر ڈالی، جہاں اسے بہت سے سوال نظر آ رہے تھے جن کے جواب جاننے کے لیے وہ بے چین تھا، اور شاید وہ آج ذہان کی اس بے چینی کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایبو نے کہا، کیا تمہیں وہ روزز نظر آ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گارڈن میں لگے ان سفید پھولوں کی طرف اشارہ کیا جو ہوا سے لہرا رہے تھے۔ ذہان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت ہے۔ ایبو نے کہا، میری موم کو بھی بہت پسند تھے، اس لیے میں نے انہیں اپنے ڈیڈ کی قبر پر لگا دیا۔ اور ایبو کی یہ بات سن کر ذہان کو ایک دم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ذہان نے خوف سے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں میں کہا، تمہارے ڈیڈ کی قبر؟ ذہان کو اس طرح خوف کھاتا دیکھ کر ایبو نے اپنی نظروں کو اس پر سے ہٹاتے ہوئے اس جھیل کی طرف کرتے ہوئے اپنے کولڈ وائس میں کہا، ہاں، میرے ڈیڈ کی قبر، میں نے انہیں یہاں مار کر دفنایا ہے۔ ایبو کا یہ کہنا تھا کہ ذہان ایک دم سے ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوا، جسے ایبو نے بھی نوٹس کیا تھا، اور ذہان کو خود سے خوف کھاتا دیکھ کر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ ایبو نے کہا، میرے ڈیڈ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، اس لیے وہ مجھے بہت مارتے تھے، مجھے اس پیلس کے اندھیری تہہ خانے میں بند کر کے رکھتے تھے، لیکن میری موم مجھے بچا لیا کرتی تھی، وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دیتی تھی، وہ میرے ڈیڈ سے میری حفاظت کرتی تھی۔ جب میرے ڈیڈ مجھے مارنے کے لیے آتے تھے میں اپنی موم کی باہوں میں چھپ جاتا تھا اور وہ مجھے کچھ نہیں کر پاتے تھے، میری موم مجھے بچا لیتی تھی، لیکن تمہارے ڈیڈ نے مجھ سے میرا محافظ چھین لیا۔ تمہارے ڈیڈ میری موم کے انڈر کام کرتے تھے۔ میری موم ایک مافیا کوئین تھی جو اس مافیا ورلڈ پر راج کرتی تھی۔ ہر کوئی ان کے سامنے جھکتا تھا۔ وہ بہت ہی نڈر اور بہادر لیڈی تھی۔ ان کے دشمن انہیں دیکھ کر خوف کھاتے تھے، انہیں دیکھ کر کانپتے تھے۔ ان کے خاص آدمیوں میں سے تمہارے ڈیڈ بھی تھے جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن تمہارے ڈیڈ نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا۔ اس مافیا کنگ کی چیئر کو پانے کے لیے انہیں قتل کر دیا۔
اور اس معصوم بچے سے اس کی ماں چھین لی. اس بچے سے اس کا وہ شیلٹر چھین لیا جہاں وہ اپنے ڈیڈ سے چھپتا تھا. اس کی ماں کے جانے کے بعد اس معصوم بچے کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. جب اس کے ڈیڈ اسے مارتے تھے تو اس معصوم بچے کو ان سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. جب وہ اس معصوم بچے کو ساری رات اس تہہ خانے میں بند کر کے رکھتے تھے تو اسے وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا. جب وہ معصوم بچہ بھوک سے تڑپتا تھا تب اسے کھانا کھلانے والا کوئی نہیں تھا. اس معصوم بچے کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. جب وہ معصوم بچہ اپنے ڈیڈ کی مار کھا کر روتا تھا تو اسے چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا. اس کے ڈیڈ کے دیے زخموں پر مرہم لگانے والا کوئی نہیں تھا. وہ معصوم بچہ تنہا تھا، اکیلا تھا. خوف کی ایسی دنیا تھی جہاں میں 24 گھنٹے جیتا تھا، گھٹ گھٹ کر. ہمیشہ مجھے اس بات کا خوف لگا رہتا تھا کہ وہ ڈور اوپن ہوگا اور میرے ڈیڈ وہاں سے چلتے ہوئے آئیں گے اور مجھے بہت ماریں گے. اسی ڈر سے میں ڈیسک کے نیچے چھپا رہتا تھا. ایک دن میں چھپا ہوا تھا جب ڈیڈ روم میں داخل ہوئے تھے. وہ بہت ہی غصے اور نشے میں تھے. انہوں نے مجھے میرے پیروں سے پکڑ کر مجھے کھینچ کر باہر نکالا اور مجھے بہت مارا اور پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے یہاں لائے. وہ لگاتار چینٹ کیے جا رہے تھے کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے کیونکہ میں ان کی سب سے بڑی غلطی کا نتیجہ ہوں. انہوں نے مجھے خنجر سے مارنے کی کوشش کی جس کا نشان میری کمر پر ہے. وہ اتنے نشے میں تھے کہ وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. انہوں نے میرے گلے کے لاکٹ سے مجھے کس کر پکڑ رکھا تھا جس کو انہوں نے کھینچ کر توڑ دیا اور اسے جھیل میں پھینک دیا. وہ ایک آخری نشانی تھی میری ماں کی جو میرے پاس تھی، جو میری ماں نے مجھے دی تھی، جس کے سہارے میں اس اندھیرے کمرے میں بند رہتا تھا، اس تہہ خانے میں قید رہتا تھا. جب مجھے ڈر لگتا تھا تو میں اس پینڈنٹ کو اپنی مٹھیوں کے درمیان بھینچ لیتا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ماں میرے پاس ہے. میری ماں کی وہ آخری نشانی تھی جو میرے پاس تھی، جسے میرے ڈیڈ نے اس جھیل میں پھینک دیا. اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا اور اسی غصے نے مجھے ہمت بھی دی تھی. میں نے اسی خنجر کو اپنے ڈیڈ کے سینے میں اتار دیا. اس روز وہ تڑپ رہے تھے اور میں انہیں تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا. اس دن میں نے یہ سبق سیکھا، ظلم سہو گے تو مارے جاؤ گے، تب حکومت کرو گے جب ظلم کرو گے. اس دن میں نے ظلم کر کے حکومت کرنی سیکھی تھی. یہ کہتے ہوئے ایبو بہت ہی ڈارک ساؤنڈ کر رہا تھا جسے دیکھ کر ذہان بھی خوف سے کانپ گیا تھا. وہ اپنے آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ایبو کی طرف دیکھ رہا تھا. ایبو کا درد اسے اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس ہوا. کتنے ظلم سہے ہیں اس معصوم نے، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں اس معصوم بچے نے، کتنی وحشت سے ہو کر گزرا ہے یہ. اسے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ آج یہ خود لوگوں کے لیے ڈر بن گیا. اس معصوم بچے کی معصومیت کا قتل کیا گیا ہے، ورنہ آج یہ ایسا وحشی نہ ہوتا. اس کو بھی لوگ چاہنے کی تمنا رکھتے، یہ بھی اپنی زندگی خوشی سے جیتا. اس دنیا میں اس کے ڈیڈ کی طرح نہ جانے کتنے ہوں گے جو اپنے اندر کا زہر لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں اور پھر ان کے سامنے آنے والے دوسرے لوگ اس زہر کا شکار ہوتے ہیں جن کی ان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. ذہان یہ سوچتے ہوئے اپنی آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے ایبو کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ ایبو نے ایک دم سے ذہان کا گلا پکڑا اور اس کا گلا پکڑتے ہوئے اس ملائم گھاس پر پن کرتا اس پر لین ہوا. اور اس طرح سے ایبو کو ایک دم سے خود پر حاوی ہوتا دیکھ کر ذہان کی سانسیں اس کی حلق میں اٹکی تھی. وہ اپنے خوف سے بڑی ہوتی آنکھوں سے ایبو کی ان ڈارک آئیز میں دیکھ رہا تھا جس میں ذہان کو لاوے جیسی تپش محسوس ہوئی تھی. ایبو کی آنکھیں غصے سے پوری طرح سرخ ہو گئی تھی. اس نے ذہان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے باپ سے اتنی نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت جتنی وہ تم سے محبت کرتے ہیں. میں اسے بھی وہی تکلیف دینا چاہتا ہوں جس تکلیف سے میں ہو کر گزرا ہوں. تمہارے باپ کی وجہ سے ہی میری ماں مری، تمہارے باپ کی وجہ سے ہی میں نے ایسا بچپن جیا، اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے بھی وہی تکلیف محسوس ہوگی جو تکلیف مجھے محسوس ہوئی تھی.
ईबो को एक बार फिर से अपने वहशी रूप में लौटता देखकर जहान एकदम से छटपटाया। उसने ईबो की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं लान वांग ईबो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ईबो ने वापस से जहान को पिन करते हुए कहा, नो नो स्वीटहार्ट, अब नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे पास एक मौका था जिसको तुमने गंवा दिया। अब तुम खुद इस कैद में लौट कर आए हो जहाँ से तुम्हें कभी रिहाई नहीं मिलेगी। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई और घर है। अब जो भी है यही है, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ सारी जिंदगी रहना है मेरे साथ। ये कहते हुए वो जहान के लिप्स पर लीन होता उसे हार्डली किस करने लगा और जहान रोते हुए उसे ज़बरदस्ती पुश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसकी मजबूत बाजुओं की कैद में बेबस था। उसकी आंखों से वो आंसू कंटिन्यूअसली बस बहे जा रहे थे। आफ्टर 1 वीक, जहाँ जहान वापस से उसी कमरे में उस सोफे से टेक लगाए बैठा हुआ था, उसकी निगाहें आसमान की तरफ थीं, जहाँ चांद अपनी चांदनी को बिखेरे आबोताब से चमक रहा था। उसके पैरों की बेड़ियों ने वापस से उसे जकड़ लिया था। वो एक बार फिर से उनकी कैद में था। वो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उस चांद की तरफ देखे जा रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, मगर जहान को उसकी कुछ खबर ना हुई। वो उसी तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ईबो शावर लेकर बाथरोब पहने टावल से अपने बालों को सुखाता बाहर आया। उसकी नज़र सीधे जहान पर पड़ी। वो उस टावल को वहीं बेड पर रखता सीधा जहान की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाने लगा। ईबो के छूते ही जहान अपने होश में लौटा था। उसने अपनी कंफ्यूज नज़रों से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? वो उसे अपनी बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, तुमसे कितनी दफ़ा मना किया है फर्श पर बैठने के लिए? फर्श ठंडा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बेड पर बैठो, फर्श पर नहीं। यह कहते हुए ईबो की नज़र बेड साइड टेबल पर गई। ईबो ने अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहा, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया? यह कहते हुए उसने उस फूड ट्रे को उठाते हुए जहान के सामने रखा और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, जिसे जहान बिना कुछ कहे खाने लगा। खाना खिलाने के बाद ईबो ने उसे मेडिसिन दी और उसकी शर्ट को रिमूव करते उसके ज़ख्मों पर मलहम लगाते हुए कहा, ये ऑलमोस्ट भर गए हैं, 1-2 दिन में ये ठीक भी हो जाएंगे। जहान ने अपनी खाली आंखों से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ज़ख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उसके निशान रह जाएंगे, उनको नहीं भरा जा सकता लान वांग ईबो। ये कहते हुए उसने बेड पर लेटते कंफर्टर को अपने ऊपर खींच लिया। ईबो ने जहान की तरफ देखते हुए अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहा, ये निशान भी मैं मिटा दूंगा, ये भी चले जाएंगे। मैंने स्कार रिमूवर ऑर्डर कर दिया है, उसे ज़ख्म के साथ साथ ये स्कार भी ठीक हो जाएगा। ईबो ये कहकर वहाँ से उठता सोफे पर आकर लेट गया। आफ्टर 1 वीक इन नाइट, जहान शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है। उसने एक लंबी सी वाइट टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें से उसके वो वाइट मिल्की लेग्स विजिबल हो रहे थे। जहान अपने बालों को सुखाता हुआ उस वॉशरूम से बाहर आया, इस बात से बेखबर कि किसी की इंटेंस होती निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और वो अपनी उस ब्यूटी से उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। जहान को सिर्फ अपनी उस वाइट शर्ट में देखकर उसका गला सूख रहा था। ईबो ने गल्प करते हुए अपनी इंटेंस निगाहों से जहान की उस खूबसूरत सरापे को पैर तसर देखा। वो उसे देखने में इतना खो गया था कि उसे खबर ही न थी कि वो अभी कर क्या रहा था, और उसे होश तब आया जब उसकी वो बुक उसकी चेस्ट पर गिरी। वो एकदम से उस सोफे से उठ खड़ा हुआ और एक भरपूर नज़र जहान पर डालता गुस्से से अपनी मुट्ठियों और जबड़े को भींचे वो तेज़ी से रूम से बाहर निकल गया। ईबो को एकदम से अपनी नज़रों के सामने से गुजरता देख जहान ने उसे हैरत से देखते हुए खुद से कहा, अब इसे क्या हो गया? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं जो इसे इतना गुस्सा आ गया। वो ये कहता सोफे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ ईबो, जो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था, मगर अभी कुछ देर पहले का मंजर उसकी नज़रों के सामने से जा ही नहीं रहा था। वो किसी रील की तरह उसकी नज़रों के सामने रिपीट होकर बार बार आ रहा था, जो उसके अंदर की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जहान में ऐसा क्या नशा है जो इस ड्रिंक के नशे को भी मात दे रहा है। वो उसे भला क्यों नहीं भुला पा रहा, और इसी गुस्से में वो लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। आफ्टर सम टाइम ईबो रूम का डोर हल्के से ओपन करके रूम में एंटर हुआ और फिर उसी हल्के हाथ से रूम का डोर बंद कर दिया। इस वक्त वो एकदम नशे में था। नशे की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हुई पड़ी थीं
उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। डोर लॉक करके वो मुड़ा तो उसकी नज़र सीधा सोफे पर लेटे जहान पर गई, जो उस चांद की रोशनी में पीसफुली अपनी आंखों को बंद करके सो रहा था। उस चांद की रोशनी में उसका वो खूबसूरत वजूद और निखर कर आ रहा था। ईबो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता जहान के पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। ईबो ने बिल्कुल हल्के हाथ से जहान के फोरहेड के उन बिखरे बालों को हटाते हुए विस्परिंग टोन में कहा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो शाओवी जहान? तुम मुझे अपना आप भूलने पर मजबूर क्यों कर देते हो? तुम में ऐसा क्या है जो मुझे कैद कर लेता है और मैं अपना मकसद भूलने लगता हूँ तुम्हें देखकर? ये कहते हुए उसकी आंखें डार्क हुई थी। मुझे तुमसे नफरत है शाओवी जहान। मैं इतनी दूर आकर सिर्फ तुम्हारी वजह से कमज़ोर नहीं पड़ सकता। तुम मुझे इस तरह बहका नहीं सकते। मेरे मकसद से मुझे दूर नहीं कर सकते। ये कहते हुए ईबो अपने डार्क होती आंखों से अपनी उंगलियों को स्लाइड करते हुए उसके गले को प्रेस करने ही वाला था कि एकदम से उसकी वो डार्क आंखें जहान की उन थिक आईलैशेस से टकराई और उसके हाथ वहीं थम गए। ईबो जहान के फेस के बिल्कुल करीब था, इतना कि जहान के दिल की धड़कन को अपने कानों से सुन सकता था। मगर जहान उन सब से बिल्कुल अनजान अब भी पीसफुली सो रहा था। वो गहरी नींद में था। ईबो ने अपने थंब से उसकी आईलैशेस को बिल्कुल हल्के से टच करते हुए अपनी उसी विस्परिंग टोन में कहा, लेकिन तुम्हारी इन आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है, जिनमें मैं डूबना चाहता हूँ? तुम्हारे फेस में ऐसा क्या है जिसे मैं करीब से देखना चाहता हूँ? उसके हर एक हिस्से को अपनी उंगलियों से टच करके महसूस करना चाहता हूँ। ये कहते हुए ईबो की उंगलियां किसी फर की तरह जहान के पूरे चेहरे पर मूव हो रही थी, जो रफ्ता रफ्ता अब उसके नेक तक आ रही थी। उसने अपनी इंटेंस होती नज़रों से जहान के उस खूबसूरत वजूद को देखते हुए कहा, तुम में ऐसा क्या है जिसे मैं फील करना चाहता हूँ? तुम मेरे हवासों पर क्यों सवार हो रहे हो जहान? क्यों तुमको मैं खुद से दूर नहीं कर पा रहा, चाह कर भी नफरत नहीं कर पा रहा? ऐसा क्या है तुम में? ऐसा क्या है? ये कहते हुए उसने उसके लिप्स को हल्का सा टच किया और फिर कहा, तुम्हारे इन लिप्स में जिनको मैं ये कहते हुए ईबो एक पल के लिए ठहरा और फिर एकदम से उसने जहान के लिप्स पर अटैक कर दिया और उस पर लीन होकर फोर्सफुली उसे किस करने लगा, जिससे जहान तड़प कर उठा। और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, ईबो को खुद पर लीन होकर खुद को किस करता देख वो एकदम से लर्जा। वो उसे अपने हाथों से पुश करने की कोशिश करने लगा, खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ईबो को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। ईबो ने जहान के स्ट्रगल को और नाकाम करते हुए उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों से उसके सर के ऊपर पिन कर दिया और अपनी एक हाथ से उसके जबड़े को कसकर जकड़े उसे और हार्डली किस करने लगा। अपनी कोशिशों को नाकाम होता देख जहान की आंखें एकदम से बरसी थी। वो रो रहा था। थोड़े टाइम बाद भी जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो जहान को अपनी बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ा और इस बीच जहान लगातार उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। वो उसके शोल्डर पर हिट किए जा रहा था, उसे पंच किए जा रहा था और लगातार चैंट किए जा रहा था, ये तुम क्या कर रहे हो लानवांग ईबो? छोड़ो मुझे, तुम सही नहीं कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे नीचे उतारो। जहान लगातार रोए जा रहा था और बोले जा रहा था, लेकिन ईबो पर उसकी किसी भी बात का कुछ असर नहीं हुआ और ना ही उसके पंच करने से उसे कुछ भी फर्क पड़ा। वो उसे बेड पर थ्रो करता उसके ऊपर आया और उसके सर के ऊपर उसके हाथ को पिन करते हुए उसके फेस के पास लीन हुआ और एक हाथ से उसके गले को दबाते हुए अपनी अथॉरिटेटिव वॉइस में कहा, नो स्वीटहार्ट, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे बहुत टीज किया है, मुझे बहुत तड़पाया है, अपनी खूबसूरती से मुझे ट्रिगर किया है तुमने, मुझे अनकंट्रोल किया है, तो अब इसकी पनिशमेंट भुगतो। अब सिर्फ तुम मेरे हो और आज तुमको क्लेम करके मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। ये कहते हुए वो उसके नेक पर लीन हुआ और उसकी नेक को सक करने लगा। जहान एकदम से छटपटाया, नहीं लानवांग ईबो, तुम ये गलत कर रहे हो, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो लानवांग ईबो, मुझे जाने दो।
जहान की ये बात सुनकर ईबो ने अपने सर को उसकी नेक से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा, जो आंसुओं से पूरी तरह भीगी हुई थी। जहान ने अपनी डबडबाई हुई आंखों से उसकी लस्टफुल आइज में देखते हुए उससे बेग करते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो लान वांग ईबो, मेरे साथ ऐसा मत करो। ईबो ने उसकी बैग को नजरअंदाज करते हुए कहा, अभी नहीं, कभी नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी बेल्ट को अनबकल किया और उसे निकालते उसने जहान के हाथों को उससे बेडहेड से टाई कर दिया और फिर एक ही झटके में उसकी शर्ट को फाड़ता उस पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। जहान रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उस भेड़िए ने उसकी एक न सुनी। वो आज पूरी तरह से उस नशे में पागल हो चुका था, जो उसके अंदर अच्छे और बुरे की सारी पहचान मिटा गया था, और वो उस शराब के नशे में जहान को तार तार कर गया। उस रात के बाद से जहान ने ईबो की एक झलक नहीं देखी थी और ना ही वो देखना चाहता था। ईबो के कहने पर मेड उसे टाइम टाइम से खाना दे जाती थी, जिसे जहान हाथ तक नहीं लगाता था। 2 दिन हो गए थे, लेकिन जहान ने कुछ नहीं खाया था। वो ज़मीन पर बेड से टेक लगाए बैठा हुआ था जब ईबो रूम में एंटर हुआ। रूम में काफ़ी अंधेरा था। ईबो ने स्विच बटन को ऑन किया तो कमरे में रोशनी फैल गई। उसने बेड की तरफ देखा तो उसे जहान वहीं ज़मीन पर बैठा नजर आया। वो चलता हुआ उसके करीब आया और अपने एक घुटने को ज़मीन से टेके उसके लेवल तक बैठा और अपने हाथ में पकड़े उस नूडल्स से भरे बाउल को जहान के सामने करते हुए कहा, ईट। लेकिन जहान ने बिना कुछ कहे अपनी नज़रें फेर ली। ईबो ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, खाना क्यों नहीं खा रहे, मरना चाहते हो क्या? लेकिन जहान ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। ईबो ने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। लेकिन अभी भी जहान वैसे ही बैठा हुआ था, अपने मुंह को फेरे हुए। ईबो ने गुस्से से जहान के जबड़े को जकड़ते हुए अपने सामने किया और उसकी सुर्ख आंखों में गुस्से से देखते हुए अपने जबड़े को गुस्से से भींचे कदरे पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। रोने की वजह से जहान की आंखें सुर्ख हुई पड़ी थी। जहान की उन सुर्ख आंखों को देखते ही जहान का गुस्सा एक पल के लिए नॉर्मल हुआ, लेकिन अगले ही पल जहान के अल्फाज ईबो के गुस्से के लावे को भड़का गए। जहान ने अपनी धीमी आवाज में कहा, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो लान वांग ईबो? अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमने अपना बदला ले लिया मुझे बर्बाद करके। अब मेरे डैड का पीछा छोड़ दो। तुम्हें जो करना था मेरे साथ तुमने कर लिया। अब मेरा और मेरे डैड का पीछा छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है तो मैं भी लावारिस हूँ? नहीं लान वांग ईबो, मेरे अपने हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे लिए तड़प रहे होंगे, मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे। मुझे मेरे अपनों के पास जाने दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो अपनी कैद से लान वांग ईबो। और ये कहने की देर थी कि ईबो ने उस बाउल को ज़मीन में फेंका और उस खंजर को जहान के गले पर रखते हुए कहा, जस्ट शट अप। आई सेड जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ एक रात क्या गुजार ली? तुम्हारा ख्याल क्या रख लिया? तुम कुछ भी बोलोगे? नहीं शाओविजान, नहीं। आज भी तुम मेरी कैद में हो। तुम्हारी एक एक धड़कन मेरी इजाज़त की मोहताज है, जिसको कभी भी और किसी भी पल मैं रोक सकता हूँ। रोक दो। इससे पहले कि वो आगे कुछ भी बोलता, जहान ने उसे बीच में ही रोक दिया, ये कहते हुए, रोक दो लान वांग ईबो, मैं भी नहीं चाहता कि ये और ज़्यादा धड़कें। और जहान का ये कहना था कि ईबो के हाथ शिवर हुए थे। उसके गुस्से से पहनी आंखें हैरत से बड़ी हुई। उसको ऐसा फील हुआ मानो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो बिना कुछ बोले जहान की आंखों में देख रहा था, जिसकी आंखों से वो आंसू लगातार बिना रुके बस बहे जा रहे थे। जहान ने कहा, कम ऑन लान वांग ईबो, किल मी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा अपना खुद का वजूद भी नहीं। इस वक्त मुझे अपना आप यूज़लेस फील हो रहा है। मेरा अपना खुद का वजूद मुझे यूज़लेस फील हो रहा है। मैं खुद के लिए भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। आई हैव नो फीलिंग्स। सब मर गया। मुझ में अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा लान वांग ईबो। ये कहते हुए जहान जोर से चीखा। उसके चीखने का असर था कि ईबो ने अपनी पलकें झपकाई।
وہ غیر یقینی سے ذہان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ذہان۔ ذہان کے جبڑے پر اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی۔ ذہان نے پھر سے کہا، جسٹ کل می، I can't take myself anymore لان وانگ ہیبو، because I can't take it anymore۔ اور اگر آج تم نے مجھے نہیں مارا تو میں خود اپنی جان لے لوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ ایبو کے ہاتھوں کو پکڑے اس خنجر کو اپنی نیک پر پریس کرنے لگا، کیونکہ ذہان اب سچ میں جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب اس قید سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود کو ختم کر کے خود کو لان وانگ ایبو کی قید سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کو خود کو ہارم کرنے کی کوشش کرتا دیکھ ایبو نے ایک دم سے اس خنجر کو مضبوطی سے پکڑا تھا تاکہ ذہان خود کو اس سے چوٹ نہ پہنچا سکے۔ ذہان نے فورسفلی اس خنجر سے خود کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایبو کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایبو نے اپنے ہاتھوں کو ذہان کی پکڑ سے چھڑاتے اس خنجر کو دور پھینکا اور ایک زوردار تماچا اس نے ذہان کے فیس پر جڑ دیا اور اس کے جبڑے کو کس کر دبوچتے ہوئے اس کے فیس کے بالکل قریب ہوا اور اپنی غصے سے شعلہ بار ہوتی آنکھوں سے اس کی آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھا اور غصے سے اپنے جبڑے کو بھینچے کہا، خبردار، خبردار شاوی ذہان، اگر تم نے خود کو چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی کی تو تم اب صرف میرے ہو۔ تمہارا درد، تمہارے آنسو، تمہاری سانسیں، تمہارے دل کی ہر ایک دھڑکن اب صرف میری ہے۔ تمہارے جسم کے ہر ایک حصے پر اب صرف میرا حق ہے۔ اس لان وانگ ایبو کا حق ہے، صرف اس لان وانگ ایبو کا۔ بیکاز فکنگ ڈیم اٹ آئی لو یو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، سنا تم نے؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے غصے کی ضبط کو آزماتا ذہان پر چیخا تھا، اور یہ سن کر ذہان حیرت سے ایبو کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک ٹوٹی ہوئی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، پیار؟ کیسا پیار؟ کون سا پیار؟ کیا یہ ہے تمہارا پیار؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون سا پیار ہے تمہارا لان وانگ ایبو جو مجھے سمجھ نہیں آتا؟ یہ کیسا پیار ہے؟ کیا تم لوگوں سے اس طرح پیار کرتے ہو؟ اس طرح انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر؟ نہیں لان وانگ ایبو، تم مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ میں صرف تمہارے لیے کھلونا ہوں جسے تم جب چاہے جیسے چاہے یوز کرتے ہو، لیکن میں کوئی کھلونا نہیں ہوں۔ میں ایک انسان ہوں، ایک جیتا جاگتا انسان۔ ذہان نے اپنی آنسوؤں سے بھیگی ہیلپ لیس آنکھوں سے ایبو کی طرف دیکھتے ہوئے ریکویسٹڈ ٹون میں کہا، میں جینا چاہتا ہوں ایبو، میں جینا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو یہاں سے، پلیز مجھے جانے دو۔ یہ کہہ کر وہ ایبو کے ہی سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ذہان کو اس طرح سے روتا دیکھ کر ایبو کی پکڑ اس کے جبڑے پر کمزور ہوئی۔ اس کا غصہ جیسے ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے ذہان کے جبڑے سے اپنے ہاتھ کو ہٹاتے اس کی رخسار پر ٹھہرے اس آنسو کی موتی کو اپنی انگلیوں میں چن کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں ایسا کیا ہے جو اس کے دل کو کانپنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس آنسو کے موتی پر ایک نظر ڈال کر اس نے ذہان کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے ذہان کو اپنی باہوں میں اٹھاتا کھڑا ہوا اور اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ ذہان کا سانس رکا تھا۔ اس نے ایبو کی طرف اپنی کویسچننگ نظروں سے دیکھتے ہوئے گھبرا کر سوال کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو لان وانگ ایبو؟ ایبو اسے بیڈ پر لیٹاتا خود بھی اوپر چڑھایا اور اسے اپنی باہوں میں قید کرتا لیٹ گیا، مگر ذہان کو اب بھی اسٹرگل کرتا دیکھ اس نے اپنی کولڈ وائس میں کہا، رات کافی ہو گئی ہے، اپنی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ ایبو کی یہ آواز کان میں پڑتے ہی ذہان ایک دم سے شانت ہو گیا اور وہ سائلنٹلی ایبو کی باہوں میں اپنے آنسو بہانے لگا۔ وہ خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ جہاں ذہان خاموشی سے اپنے آنسو بہا رہا تھا، وہیں ایبو لگاتار اپنے من میں چینٹ کیے جا رہا تھا، نہیں، میں تمہیں خود سے دور کبھی نہیں کروں گا، تم صرف میرے ہو اور تم میرے ہی پاس رہو گے، کوئی بھی مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا، تم اسی طرح ہمیشہ میری قید میں رہو گے، تم مجھ سے کہیں دور نہیں بھاگ سکتے، میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا، نہیں، کبھی بھی نہیں، نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ذہان کو اور کس کر اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔
आफ्टर सम टाइम इन मॉर्निंग। सूरज की किरण से पूरा कमरा रोशन हुआ था और जब उसकी रोशनी जहान की आंखों पर पड़ी तो उसने भी अपनी आंखें खोल ली और खुद को स्टेबल करता हुआ वो बेड पर उठ बैठा। उसने बेड की दूसरी जानिब देखा तो ईबो वहाँ मौजूद नहीं था। वो कंफर्टर हटाकर उठने ही वाला था कि उसकी नज़र एक की पर पड़ी जो कि ईबो की पॉकेट से कल रात को गिर गई थी, जिसे देखकर जहान एकदम से खुश हुआ। उसने फ़ौरन वो चाबी उठाई और अपनी बेड़ियों के लॉक में उसे इंसर्ट किया। इंसर्ट करके जैसे ही जहान ने ट्विस्ट किया, एक क्लिक के साथ उन बेड़ियों का लॉक ओपन हो गया, जिसे देखकर जहान बेहद खुश हुआ था। वो उन बेड़ियों से खुद को आज़ाद करता तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने डोर ओपन करने की कोशिश की तो लकीली वो खुल गया। जहान को एक पल के लिए हैरत हुई, लेकिन फिर अपनी सोचों को साइड करते हुए वो कमरे से बाहर निकला। वो वांग पैलेस पूरी तरह से खाली था। वहाँ एक भी गार्ड मौजूद नहीं थे और ये देखकर जहान को बहुत हैरत हुई। लेकिन जहान ने बिना सोचे और बिना एक पल और गंवाए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाता तेज़ी से मेन डोर की तरफ बढ़ा। बाहर का एरिया पूरी तरह से खाली था, इसलिए किसी ने भी जहान को नहीं देखा और वो बिना किसी की नज़र में आए तेज़ी से उस वांग पैलेस से बाहर निकल गया। अब वो आज़ाद था। उसे कितनी खुशी हो रही थी उसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। वो उन झाड़ियों में छुपता छुपाता बाहर की तरफ निकल गया। अब वो पूरी तरह से आज़ाद था, उस लान वांग ईबो की कैद से आज़ाद। अब उसके पैरों में कोई बेड़ियाँ नहीं होंगी, उसके जिस्म पर कोई ज़ख्म नहीं होंगे, उसे किसी से डरना नहीं पड़ेगा। वो खुलकर जिएगा, आज़ादी से जिएगा जैसे वो जीता था। वो आज़ाद था। हाँ, शाओवी जहान अब आज़ाद था। सो हेलो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो कि आप लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं स्टोरी ऐसे बीच में ही रोक रही हूँ, बट मैं क्या करूँ। मैंने ट्राई किया बट एक ही शॉर्ट में स्टोरी कवर अप नहीं हो पाई, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगी। ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका एक और फाइनल पार्ट अपलोड करूँगी, इसलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। मैं बहुत जल्द इसे अपलोड कर दूँगी, ओके। और मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। क्या ये इंटरेस्टिंग थी? क्या आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट रहेगा? और आप लोगों को क्या लगता है जहान इतनी आसानी से ईबो की कैद से आज़ाद कैसे हो गया? क्या ये आप लोगों को सस्पिशियस नहीं लगा? अगर लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस पार्ट से रिलेटेड अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अब इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड फॉलो फॉर मोर।